वेलकम टू इंस्टाग्राम लाइव विद कोच दर्शन व्यास। और आज मेरे स्पेशल गेस्ट है, ही इज अ ट्रेन्ड मेडिकल डॉक्टर, ही इज म्यूजिशियन एट हार्ट, ही लव्स टू वर्क आउट, ही इज अ triathlete, and of course he is a trained surgeon. So here we go, and we are live with Dr. Dipen Patel. Let's get our guest online today, and once he's online, hi Dr. Dipen, how are you? Hi, good afternoon. How are you? I'm fine. Good afternoon. I'm doing good. So I was just giving you an introduction to the viewers, और हमारे viewers के लिए मैं फिर से आपको इंट्रोड्यूस करता हूं. We are meeting today somebody special. He is a trained cancer surgeon, head and neck cancer surgeon. He is a music enthusiast. Basically, he is a musician by heart. He is a fitness freak. Actually, इनके six pack abs हैं, so ये fitness में बहुत बिलीव करते हैं. He is a triathlete and more so, he is a social media influencer. So आज हमारे जो गेस्ट है, he is a one man army, who is a cancer surgeon, who is a social media influencer, who is a musician, and of course, over and above, he is a sports freak. He is an athlete. So, Dr. Dipen Patel, आपका स्वागत है. Thanks a lot for my not so short introduction. I really appreciate the way you have introduced me. That's just the part of me that you are talking about. करेक्ट. ओके, सो दिपेन, हमारे व्यूअर्स के लिए आप अपनी बैकग्राउंड बताइए, आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी शेयर कीजिए, और ऑफ कोर्स आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन दीजिए. Yeah. Hi everyone. So for those who are watching me, I'm Dr. Dipen Patel. I am a head and neck cancer surgeon by profession, and like Darshan Bhai said, I am a triathlete by passion, and music is my another passion that I've explored. My music journey has been long, so I'll start my introduction with my medical background. Okay. So I belong to a family of doctors. So my dad, my grandfather, my real paternal uncle, my maternal uncle, there are more than 7-8 doctors, all doctors in my family. Yeah, and so that's what my background is. And to your surprise, when I tried to develop my interest for being a medico or for medical field, they actually counseled me in or against it, both. That if you want to earn good money, that's why if you look at us and you want to earn the same money or more, and that's why you want to be a doctor, don't be. Okay. For earning money, there are many more different ways to earn money, but when you decide to be a doctor, earning money should not be your primary goal. Your primary goal should be to help the society in whichever way you can. Okay. And that help is not only by treating the patients or curing them from the disease. As a doctor, you have to inspire people for getting into good shape or good health. And Okay. stay active in their life and stay away from the diseases. You don't want people to have disease, right? Correct. So yeah, so in the first place, if you want to live a respectable life and affect the society or influence the society in a very positive manner, that you want to make this world a better place to live, then only be a doctor. Otherwise, making money is never a goal when you want to be a doctor. So that's my message for the youth as well, कि medical branch अच्छी है, इसमें अच्छा future है. नहीं, future medical branch में अच्छा नहीं है, future तो आपको बनाना है society का. मेडिकल ब्रांच आपका फ्यूचर नहीं बनाएगी, सोसाइटी का फ्यूचर आपके हाथों में है. सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू रिमेंबर द डायलॉग फ्रॉम द बैटमैन मूवी, विद द ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. करेक्ट. या, सो सोसाइटी इज इनेबलिंग यू टू हील देम, टू क्योर देम ऑफ द डिजीज. So True. with that power, you have a responsibility that you have to be a very socially responsible person. आपने एक बहुत शानदार बात कही यहाँ पे कि इंस्पिरेशन, लाइक इंस्पिरेशन वाज द की वर्ड विच आई पिक्ड अप यहाँ पे, जहाँ पे आपके पेरेंट्स के साथ, आपके परिवार के साथ जो आपको काउंसलिंग किया गया ड्यूरिंग योर अर्ली एजेस, कि जहाँ पे यू हैव टू डिसाइड कि मैं कौन सा प्रोफेशन चूज करूंगा, एंड दे मेंशन दिस इंस्पिरेशन. सो आई थिंक, कैन यू से समथिंग हियर, जहाँ पे हमारे जो युवा हैं, हमारे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हैं, पर अगर वो अपनी करियर को चूज कर रहे हैं, तो आप इंस्पिरेशन के बारे में कुछ बताइए कि किसने आपको इंस्पायर किया और क्यों. सो इंस्पिरेशन इतना कैची वर्ड है कि अगर हम नॉर्मल बात सोचे तो लोग बोलते हैं कि अपना पैशन फॉलो करो एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. जो गो फॉलो योर पैशन, डोंट फॉलो द हर्ड एंड कॉमन डिसीजंस एंड ऑल. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, आपको प्रोफेशन या अपना पैशन ऐसे चुनना चाहिए कि वर्ल्ड के लिए और लोगों के लिए आप अच्छा क्या कर सकते हो. खुद के लिए तो सब लोग अच्छा करते हैं, कोई भी प्रोफेशन है, अच्छा करने वाले, कमाने वाले हैं. कमाने के, जैसा आपको पता है, मुझे पता है, कमाने के 100 तरीके हैं. ठीक है, आप इंजीनियर बनो फिर भी अच्छा गुड अर्निंग कमा सकते हो. आप आईटी गाय हो, आप
कुछ भी करो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप मेडिकल पर्सन हो, टीचर हो, अगर व्हाट पार्ट इज कॉमन इन ऑल दोस प्रोफेशन इज कि आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आना चाहिए, हाउ कैन आई बी अ बेटर पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब मैं इंजीनियर होके अच्छा पर्सन बन पाऊंगा, मेरी क्वालिटीज, मेरे एथिक्स फॉलो कर पाऊंगा, मेरी फिटनेस फॉलो कर पाऊंगा और सोसाइटी को अच्छा इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा इन अ हेल्दी वे, और मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैं खुद बेटर पर्सन कैसे बन सकता हूँ और सोसाइटी को लीव करने के लिए, जीने के लिए कैसे बेटर बना सकता हूँ. सो दैट शुड बी योर इंस्पिरेशन फॉर चूजिंग एनी प्रोफेशन, नॉट द मनी, नॉट द करियर एंड नॉट द थिंग दैट जैसे कि आप पैशन फॉलो करो बाकी सारी चीजें फॉलो कर लेगी. आपका पैशन अगर म्यूजिक है और अगर आप सोचते हो कि म्यूजिक विल मेक यू अ बेटर पर्सन एंड इट विल ऑल्सो मेक सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव बाय डिलीवरिंग योर आर्ट एंड एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ एंड डिलीवरिंग इट टू पीपल, देन यू शुड चूज म्यूजिक. करेक्ट. ओके, आपसे बात करते हुए मेरे पास सवाल आना शुरू हो चुके हैं, बट हम लोग उस पे बाद में जाएंगे क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है और मैं जिस डॉक्टर से बात कर रहा हूं उनकी तो मल्टीपल पर्सनालिटीज हैं. तो आपके म्यूजिक के बारे में, आपकी फिटनेस जर्नी के बारे में, आपकी सोशल मीडिया जर्नी के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट हम अभी पहले शुरुआत करते हैं आपके मेडिकल प्रोफेशन से. एज ए कैंसर सर्जन हम लोग बात करेंगे. तो यस, पीपल आर आस्किंग मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई कैन सी हियर ऑन माय लैपटॉप, बट आई थिंक आपने कब तय किया कि आपको कैंसर सर्जन बनना है? बिकॉज मैं समझता हूं कि एमबीबीएस करने के बाद आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा, तो व्हेन डिड यू रियलाइज कि आपको कैंसर में जाना है या आपको सर्जन बनना है? किस तरह से आपकी जर्नी हुई थी? I'll start the journey back from 2004 when I cleared Okay. my 12th standard. I was a ranker in 10th standard. So मेरा Okay. 10th standard में बोर्ड में रैंक था, जैसा अहमदाबाद लोकल सिटी है, तो अहमदाबाद सिटी में मैं 7th रैंक था और Wonderful. पूरे गुजरात में I was the 10th one. So Okay. you won't believe कि हमारा ग्रोथ कितना एक्सपोनेंशियली होता है from a kid, from a teenager to a learned man Okay. and a responsible person to the society. कि मेरा जब Absolutely. मेरा जो 10th रैंक आया था बोर्ड में, गुजरात बोर्ड में, यू वोंट बिलीव ऑन दैट डे आई वाज क्राइंग कि मेरा 10th रैंक आया और गवर्नमेंट क्या है 10 तक ही रैंक देती है, 11वां रैंक नहीं होता है कोई. so imagine how we grow as a person that I used to cry कि मेरा लास्ट रैंक है. Oh. Actually, you're in top 10. Yeah, actually I was in top 10 but the last one. Correct. सो बाद में 12th मैंने किया साइंस में और हमारे टाइम तो ए और बी ग्रुप भी नहीं होता था, विच वॉज अ गुड थिंग बिकॉज Okay. मैथ्स डॉक्टर के लिए जरूरी नहीं है, मगर समझो आप मैथ्स एक लॉजिक डेवलप करने के लिए, आपका लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावरफुल बनाने के लिए मैथ्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड. Absolutely. राइट. तो अभी जो ए और बी ग्रुप हो गया है उसमें बी ग्रुप वाले हैं जो मेडिकल के लिए ऑप्ट करते हैं, दे डोंट लर्न मैथ्स. True. Yeah. So after that, 2004, I took admission in my parent institute, I would say, although I was taking the admission for the very first time. But the reason I'm calling it a parent institute is क्योंकि मेरे पापा भी बीजे मेडिकल से पढ़े हुए हैं. Oh. Yes, my dad cleared his MBBS from BJ Medical in 1981. Okay. And I got into my so-called parent institute in 2004. Oh, pretty interesting. या सो 2004 से 10 तक जैसा आप जानते हैं कि 5.5 years का MBBS रहता है और बाद में इंटर्नशिप भी होती है. सो 2010 में मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ. दैट वाज क्रॉस रोड इन माय जर्नी ऑफ करियर बिकॉज व्हाट आई वांटेड टू बी अ मेडिकल पर्सन लाइक फिजिशियन. आई वांटेड टू बी अ फिजिशियन. Okay. और हमारे टाइम जो मेरा रिजल्ट आया, माई रिजल्ट वॉज गुड बट आई समहाउ बिकॉज ऑफ द रोस्टर सिस्टम आई वॉज नॉट गेटिंग मेडिकल ब्रांच. Okay. देन इट केम टू मी कि अभी डिसीजन लेना है कि अपनी फेवरेट ब्रांच में तो नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट फेवरेट कौन है. तो माई नेक्स्ट फेवरेट वॉज साइकियाट्री बिकॉज आई एम वेरी मच डीप इन टू द लॉजिक्स एंड रीजनिंग, so I साइकोलॉजी एज वेल. या सो माई नेक्स्ट साइकियाट्री. मगर मेरे पापा ने और मेरे दादा ने, मतलब दादा का तो ड्रीम था कि डिफेंस सर्जन बने. सो ही टोल्ड मी हिज पर्सनल ड्रीम कि भाई तेरे चॉइसेस इंटरेस्ट है, आई रिस्पेक्ट देम, मगर आई वांटेड यू टू बी अ सर्जन. जब तू छोटा था तब से तेरे को सर्जन बनता देखना था. Okay. एंड माई डैड गिव मी अ रियलिटी चेक के अभी व्हेन आई वाज ट्राइंग टू चूज द ब्रांच ऑफ साइकियाट्री, तब उन्होंने मुझे रियलिटी चेक दिया कि इफ यू वांट टू गो टू यूएस और सम अदर कंट्री एंड देन यू चूज अ ब्रांच ऑफ साइकियाट्री देन इट्स फाइन. मगर इंडिया में अभी साइकियाट्री ब्रांच उतनी ग्रो नहीं की, लोग अवेयर नहीं है उसके बारे में. Okay. तो यूल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ साइकियाट्री के साइकियाट्री ब्रांच में डॉक्टर से कंसल्ट करने वाला हर लोग पागल नहीं होते. Correct. पागल इज अ वेरी शैलो वर्ड.
वर्ल्ड, राइट? Correct. देयर आर मेडिकल डिजीजेज अबाउट साइकियाट्री, मगर इंडिया में उतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो तू वो चूज कर सकता है, मगर यू विल हैव अ गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स टू मेक द सोसाइटी अवेयर ऑफ इट. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट माय मेडिकल जर्नी. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, एंड देन आई गॉट द branch of surgery, which was not my favorite branch. But Okay. once I chose the branch, I started liking it, and later on I started loving it. Okay. And that's how you know that some decisions in your life, even if they are by force, once you surrender into the decision and accept the decision fully that this is what I am destined to be, then only you can get the full benefit or have the full spectrum of blessing out of it. इंटरेस्टिंग. Right. आपने बहुत शानदार बात कही यहाँ पे कि एक बार आप अपने आप को समर्पित करते हैं वो डिसीजन को, बिकॉज आपके पास चॉइसेस अवेलेबल नहीं थी, पर Yes. जिस तरह से आपने वो बिलीव किया और जिस तरह से आपके सामने जो चॉइसेस आई थी आपने वो स्वीकार कर ली, तो उसके बाद आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले जो हम लोग अभी देख सकते हैं. Yeah. So then there comes a 3-year long surgical training, which makes you a general surgeon at the end. So MBBS and then MS general surgery, and then बाद में 3 साल का MCH in cancer surgery. Even that was very interesting. Yeah. Okay. Because throughout my MS residency, I more of liked the branch of neurosurgeon. ओके. ठीक है. या मगर न्यूरो सर्जरी ब्रांच में एज वी नो कि इमरजेंसीज काफी सारी होती है. अच्छा. So my dad made me meet some people because dad has a big medical group. So there are so many neurosurgeons in my dad's contact. So he actually made me meet them, know Okay. how they live, उनकी लाइफ क्या है, प्रोफेशनल लाइफ क्या है, पर्सनल लाइफ क्या है. तो मुझे एक पहले से रहा था कि मेरी पैरेलल लाइफ इंटेक रहनी चाहिए. ऑफ कोर्स. मैं ऐसा नहीं है इमरजेंसी में इधर उधर भागता रहूं, और मुझे नॉन इमरजेंसी वाली ब्रांच चाहिए. जैसे ऑन्को में भी इमरजेंसी होती है मगर बहुत कम इमरजेंसी होती है. करेक्ट. इट इज Unlike the brand, mostly it is pre-planned. There are only 2 emergencies in the field that I deal with: head and neck cancer surgery. One is bleeding and one is breathlessness. The Okay. patient is out of breath. You have to act in time. ओके. ओके. करेक्ट. Yeah. So neurosurgeon से मिला, बाद में मुझे पता चला कि neurosurgery is a branch full of emergencies. Okay. So even if it was my dream branch, वो नहीं ले सकता मैं, because it doesn't align with my purposes. करेक्ट. So कई बार हमें ये सीखने की जरूरत है कि कई बार हमें ड्रीम्स भी मॉडिफाई करने पड़ते हैं. ओह, इंटरेस्टिंग. बहुत सही बात की. वो कहते हैं ना कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, यू माइट गेट इट. ओह यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. So I was getting the branch of my dream, which was neurosurgery, but then I came to know that it is not aligning with the purpose, is how I want to see myself in the future. I wanted to stay deeply invested in the fitness. और मैंने जो मेरी म्यूजिक जर्नी थी वो भी 2010 से ही चालू कर दी थी. मैंने गिटार सीखना चालू किया था व्हेन आई वाज इन इंटर. ओके. तो मुझे वो जर्नी भी कंटिन्यू करनी थी, बिकॉज म्यूजिक एट इट्स ओन इम्प्लीकेशन एट पर्सनल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल. सो वो भी कंटिन्यू करना था. तो आई चोज द ब्रांच ऑफ ऑन्को सर्जरी फॉर दैट वन रीजन. एंड अनदर रीजन वाज ऑन्को सर्जरी इज अ वेरी वर्सेटाइल ब्रांच, ओके. जिसमें यू डील विथ सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर. जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, हेड एंड नेक कैंसर हो गया, पेट का, आंत का कैंसर, लंग कैंसर, नाइटल्स का कैंसर, हड्डियों का कैंसर. देयर आर अ लॉट ऑफ avenues in onco surgery. ओह. So I'm trained for operating on all of the cancers which I just mentioned. Okay. Only brain cancers, brain tumors are dealt by neurosurgeons. करेक्ट. ओके. फाइन. Yeah. फाइन. ओके. बाकी के सारे सर्जन ऑन्को सर्जन ही डील करता है. तो Okay. वो भी वर्सेटिलिटी थी कि इतनी वर्सेटाइल ब्रांच मिल रही है प्लस प्लान्ड वर्क है, तो लेट अस गो फॉर दैट. सो दैट्स हाउ आई चोज द ऑन्को सर्जरी. एंड 2016 में मैंने मेरा वो ऑन्को सर्जरी का स्टडी का कंप्लीट किया. सो माय जर्नी, मेडिकल जर्नी वाज फ्रॉम 2004 to 16, 12 good years of my life. 12 साल. ओके. 12 लॉन्ग इयर्स. ओके. Yeah. तो देखिए दीपिन भाई, आपने जो आपकी जर्नी बताई, आपने 12 साल की आपकी मेडिकल जो ट्रेनिंग है, आपकी जो स्पेशलिटी आपने चूज की, उसके बारे में बताया. तो आज जो मिथ प्रिवेल करते हैं कैंसर के बारे में इंडिया में, और yesterday I was talking to somebody who was a diabetes specialist, और गुजरात इज अ डायबिटीज कैपिटल ऑफ इंडिया. सिमिलरली अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, जैसे सेलिब्रिटीज के हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं पेपर में, सोशल मीडिया में. तो कैंसर इज बिकमिंग अ प्रिवेलेंट. तो क्या अर्ली साइंस हो सकते हैं फॉर अ लेमैन के, जहां पे उन्हें पता चलेगा कि हाँ मुझे ये शायद कैंसर हो सकता है, या मुझे अपने आप को कुछ टेस्ट करवाने चाहिए? क्या इनिशियल साइंस होते हैं? मेडिकल फील्ड में एक चीज हमें समझना जरूरी है कि मोर देन 70-80% ऑफ द डिजीजेस और द एलिमेंट्स दे आर प्योरली बिकॉज ऑफ द डाइट एंड लाइफस्टाइल. ओके. यस, 10 या 20% डिजीज ऐसे हैं जिसमें जीनेटिक्स आपके ऐसे हैं या आपकी हेरिडिटरी ऐसी है, जीन्स ऐसे हैं, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते. अगर वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट के जीनेटिक्स हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम लाइफस्टाइल और डाइट तो मॉडिफाई कर सकते हैं. ऑफ कोर्स.
And mind well, 70 to 80% of the disease, they are because of the diet and lifestyle, and they can be modified, prevented, and stayed away from by modifying our diet and lifestyle. ओके, इंटरेस्टिंग, So इंटरेस्टिंग। yes, so कैंसर भी इसी तरह एक डाइट एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जैसे Okay. इन जनरल हम कैंसर की बात करें तो जैसा आपने बताया कि कैंसर केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, Correct. बट दैट इज जस्ट हाफ द ट्रूथ। आई वुड लाइक टू कंप्लीट दैट ट्रूथ, दैट कैंसर केसेस आर बीइंग नोटिफाइड मोर देन द पास्ट। ओके, प्रीवियसली ऐसा होता था कि किसी को कैंसर है, वो डायग्नोस भी नहीं हुआ और कैंसर की ट्रीटमेंट के बिना मर गया। Okay. ठीक है, तो सोसाइटी को पता नहीं चलने वाला है कि वो एज अ कैंसर पेशेंट जिंदा है या कैंसर सर्जरी के बाद घूम रहा है। नाउअडेज वी सी लॉट ऑफ पेशेंट्स, आपने भी अपने सोशल सर्कल में या बड़े फ्रेंड्स में या फैमिली में देखा होगा कि कुछ Correct. लोग कैंसर सर्वाइवर्स है, एंड दे आर जस्ट लाइक यू एंड मी। दे आर इन द सोसाइटी लिविंग अ रिस्पेक्टेबल लाइफ और लीडिंग अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, और वो पूरी लाइफ अपनी ऐसे रिस्पेक्टेबली कैरी कर सकते हैं। मगर इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि अभी तो कैंसर के मरीज बढ़ गए, हमें जहां जाओ कैंसर के मरीज दिख रहे हैं। Correct. ठीक है, यस। प्लस मेडिकल फील्ड हैज एडवांस्ड अ लॉट कि हम कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर पाते हैं। पहले तो मेडिकल फील्ड इतना एडवांस ही नहीं हुआ था कि हम स्टेज 1 और 2 में डिजीज को डायग्नोस कर पाए, तो स्टेज 3 और 4 पे ही पता चलता था। और 4 और 3 में पता चलने से एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी होता था कि 4th स्टेज में पता चला है आपको, और वो पेशेंट अगर ट्रीटमेंट ले रहा है और इवेंचुअली द पेशेंट डाइज। सो द वर्ड दैट वाज प्रिवेलेंट बिफोर, कैंसर मीन्स कैंसर, वो True. इसी पे से, हाँ, वो इसी पे से आया था कि कैंसर जिसको होता है वो मर जाता है, मगर दैट वाज नॉट ट्रू। कैंसर होता है वो इसलिए मर जाता है क्योंकि स्टेज 4 में डायग्नोस हुआ है। स्टेज 4 में भी A, B और C होते हैं। अगर Correct. आपका काफी फैल गया है कैंसर तो यू कैन नॉट बी सेव, राइट। बट नाउअडेज द गुड पार्ट इज कि कैंसर नंबर में ज्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं, मगर स्टेज 1 और 2 में डिटेक्ट हो रहे हैं। करेक्ट। तो दिपिन भाई, यहाँ पे ये बताइए कि किस एज से आपको केयरफुल रहना चाहिए, या क्या अर्ली साइंस होते हैं? ये 2-3 चीजें ऐसी बताइए कि जहां पे आपको पता चलेगा कि मेरी हेल्थ में कुछ गड़बड़ है और सीरियस लेवल पे है, तो क्या देखना चाहिए? कैंसर के ओवरऑल सिम्टम्स तो काफी सारे होते हैं। जैसे मैं इन जनरल कैंसर के सिम्टम्स बताऊं तो बॉडी का वेट लॉस होता है। ओके, ठीक है, और अलग अलग कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें ब्रेस्ट में लंप हुआ, यूट्रस का कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर है सो उसमें परवजाइनल ब्लीडिंग होता है, आंत का कैंसर है तो इसमें एपेटाइट कम हो जाता है, वेट लॉस तो होता ही है मगर साथ में स्टूल में ब्लड आना चालू होता है। और हेड एंड नेक कैंसर की अगर बात करें तो मुंह में छाला होता है। सो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। Okay. इट स्टार्ट्स विथ अ सिंपल अल्सर इन द ओरल कैविटी, जो किसी को भी हो सकता है, आपको, मुझे, किसी को भी ओरल कैविटी में अल्सर हो सकता है। मगर वो अल्सर नॉर्मली अगर पेट साफ नहीं आने से हुआ है अथवा तो कुछ खाने में ऊपर नीचे हुआ है उससे हुआ है तो वो हील हो जाता है अपने आप, उसकी जरा भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इट कैन गेट और वो क्योर्ड ऑन कितना इट्स ओन। ड्यूरेशन होता है हील होने का? इट इज अराउंड 3 weeks। सो दैट ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो 3 हफ्तों से ज्यादा हील नहीं हो रहा है देन यू शुड कंसल्ट आइदर ऑन्कोलॉजिस्ट और ENT और डेंटल पर्सन। करेक्ट। एटलीस्ट आपके फिजिशियन को आपको इमीडिएटली मिल लेना चाहिए और उनको उनसे वाकिफ करना चाहिए कि ये 15-20 दिन, 3 हफ्ते से ये क्योर नहीं हुआ, 3 हफ्ते से ज्यादा क्योर नहीं हुआ। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हेड एंड नेक कैंसर में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे खाने में दिक्कत आना, ओके, कई बार स्वेलोइंग में प्रॉब्लम आता है। पेशेंट का टंग का कैंसर है तो बोलने में जबान हिचकिचाती है, स्वेलोइंग में पेन होता है, बोलने में पेन होता है। लेरिंग्स का कैंसर मतलब स्वर पेटी, वॉइस बॉक्स के कैंसर की बात करें तो उसमें आवाज गहरी और चेंज हो जाती है। ओके, और अगर हम थायराइड कैंसर की बात करें तो उसमें गले में एक सूजन सा लगता है, उसमें कोई पेन नहीं होता है, कोई खाने में दिक्कत नहीं होती है, नो वॉइस चेंज। बट व्हेन द थायराइड कैंसर इज इन अर्ली स्टेजेस, ओनली थिंग दैट यू कैन सी इज अ स्वेलिंग इन द नेक। बट once it progresses, you might feel a little pain or little discomfort. Then if it progresses further, तो स्टेज 4 में कई बार वॉइस चेंज की और खाने में दिक्कत की भी प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। ओके, जैसे सलाइवरी ग्लैंड की कैंसर्स होते हैं उसमें भी वो गठान की तरह ही प्रेजेंट करता है, इट्स अ लंप। ओके। सो बाय अ बेसिक ब्लड टेस्ट आपको पता चलेगा कि आपको कैंसर है? बेसिक ब्लड टेस्ट में जो CBC हम करवाते हैं, विच इज कॉल्ड अ बेसिक ब्लड टेस्ट, राइट, कंप्लीट ब्लड काउंट हम करवाते हैं, उसमें कैंसर का पता नहीं चलता है। उसमें सिर्फ ब्लड कैंसर का पता चलता है जिसमें एक्चुअली आपके ब्लड के काउंट्स चेंज होने वाले। अगर आप हेड एंड नेक कैंसर की बात करें तो उसका जो टेस्ट है वो CT स्कैन और बायोप्सी किए बिना कोई हेड एंड नेक कैंसर
कैंसर डायग्नोस नहीं हो सकता है। Okay. जस्ट अपीयरेंस पर से आपको अगर अल्सर लग रहा है तो यू शुड गेट इट चेक, एंड अगर डॉक्टर को लगेगा कि कैंसर का सस्पिशन है तो दे आर गोइंग टू एडवाइज यू सम टेस्ट जो आपको करवाने चाहिए। Okay. और कई बार So- लोग मैंने देखा है लोग डिनाइल में चले जाते हैं। Correct. आपने भी देखा होगा लोग डिनाइल में चले जाते हैं। वंस द कैंसर वर्ड इज अटर्ड बाय अ डॉक्टर, तो लोग डिनाइल में ऐसे आ जाते हैं कि नहीं कैंसर हमें तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा आपको और मुझे दोनों को पता है हेड एंड नेक कैंसर दे आर मेनली कॉज बाय टोबैको। Okay. तो टोबैको की अगर बात करें तो टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको आइदर फॉर्म में हो सकता है, आइदर इन च्यूएबल फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ गुटखा, खैनी, जर्दा, पान मसाला, अलग अलग फॉर्म में लोग कंज्यूम करते हैं टोबैको। और दूसरा होता है स्मोकेबल फॉर्म, जिसमें बीड़ी, सिगरेट है, हुक्का है, हुक्का भी निकोटीन वाला आता है, ठीक है। सो वो लोग जब कंज्यूम करते हैं तब हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो लोग क्यों उसको एडिक्ट हो जाते हैं। आपको सोच के हैरानी होगी कि लोग स्ट्रेस बस्टर की तरह उसको यूज करते हैं। Actually. यस, क्योंकि स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो आपको भी होगा, मुझे भी होगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो स्ट्रेस पे से लोग एडिक्शन पे चले जाते हैं टू फाइंड द हैप्पी हॉर्मोन्स। Okay. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू फाइंड योर हैप्पी हॉर्मोन्स फ्रॉम गुड थिंग्स एंड नॉट द थिंग्स विच कैन किल यू बैक इन रिटर्न। करेक्ट। तो ये टेम्पररी हैप्पीनेस आपको लाइफ लॉन्ग इलनेस देके जाती है और फेटल इलनेस देके जाती है। यस, फेटल इलनेस। और उसमें सिर्फ आप परेशान नहीं होते, आपके फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर प्रोफेशनल कलीग्स। बिकॉज अगर आप बात करें कि मेल्स में टोबैको का कंजम्पशन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो मेल यूजुअली अर्निंग मेंबर होता है फैमिली का। और एक मेल चला जाए और अगर फीमेल डिपेंडेंट है या होम मेकर है, ठीक है, तो वो होम मेकर फैमिली कितना परेशान होता है आप सोच सकते हो। सही बात है, सही बात है। अच्छा, डू दिस न्यू थिंग विच इज हैपनिंग, ये युवाओं में हम लोग देख रहे हैं आजकल बहुत हैपनिंग है पार्टीज में, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग एफ्लुएंट। तो और ये मेट्रोज में, बड़े सिटीज में ये ई सिगरेट्स का चलन बहुत बढ़ गया है, तो क्या यहाँ से भी कैंसर के चांसेस आ सकते हैं? ई सिगरेट या वेपिंग जिसको हम बोलते हैं, एक लेमन वर्ड है वेपिंग। तो वेपिंग जैसा आपने बोला बहुत फेमस हो गया है टीनेजर में, जेन जी में, ठीक है। दे समहाउ फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सेप्टेबल ऑप्शन एज कंपेयर टू टोबैको, बट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि उसमें भी निकोटीन आता है। और उसमें तो प्रॉब्लम ये है कि वो फ्लेवर्ड और फिल्टर्ड फॉर्म में है, तो आप डीपली इनहेल कर पाते हो और वो आपके बॉडी में ज्यादा नुकसान करके जाता है इन दी एंड। सो इट ई सिगरेट और वेपिंग इज इवन मोर डेंजरस देन द सिगरेट इटसेल्फ। सो इट्स एन अलर्ट, it is more injurious. Yes, it is more injurious than the other things that we talked about. Talking of tobacco, जो टोबैको का एडिक्ट होता है उसको टोबैको में से जो किक मिलती है, जिसको हम किक बोलते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में हम हैप्पी हॉर्मोन्स का बर्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं डोपामाइन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन। ओके। तो ये चार हार्मोन याद रखने के लिए आप ये एक शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, DOSE, डोस। ओके। Yeah, so D for dopamine, O for oxytocin, S for serotonin, and E for endorphins, like I told you. Oh, interesting. Okay. Yeah. Thank you for So, giving yeah. us this dose. Good. Yeah, we And all need and this through the dose. conversation, and through the conversation. Yes, metaphorically and literally. Absolutely, absolutely. Love you for that. Yes. Yeah. So हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे जो हैप्पी हॉर्मोन्स है, जो डोज हमने बात की, तो वो चारों हार्मोन है वो अलग अलग चीज में से मिलते हैं। मतलब हमने अपने लव्ड वन के साथ बात करते हैं तो भी ऑक्सीटोसिन, विच इज कॉल्ड हार्मोन ऑफ लव, तो वो सीक्रेट होता है। ओके। डोपामाइन है तो वो भी बात करने से या कोई अच्छी बुक पढ़ने से या एक सिंपल सी चॉकलेट खाने में से भी डोपामाइन सीक्रेट होता है। ओके। दैट्स अ फील गुड हार्मोन। सीरोटोनिन की अगर बात करें तो हम जब सन का एक्सपोजर लेते हैं, आप फील किया होगा आपकी तरफ से भी कि हम सनलाइट में जाते हैं तो वी फील गुड, राइट? करेक्ट, करेक्ट, ट्रू, वेरी ट्रू। बिकॉज इट इंक्रीजेज योर सीरोटोनिन लेवल्स। करेक्ट। तो आपको सनलाइट में जाने के बाद नींद भी अच्छी आएगी, बिकॉज सीरोटोनिन इज अ स्लीप हार्मोन। सीरोटोनिन का जो फर्दर कन्वर्जन होता है बॉडी में 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोमाइन एंड all that, so they are the hormones which are very much responsible for inducing a good, lengthy and deep sleep. सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के युग में, बिकॉज मैं हर दूसरे व्यक्ति से ये सुनता हूँ कि सर नींद पूरी नहीं हुई है, आज मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा लाउजी फील हो रहा है। तो आई थिंक ये सारे कारण है जहाँ पे ऑफकोर्स हम लोग अभी कोर सब्जेक्ट पे बात करें कैंसर एंड ऑल दैट, पर ये ग्रास रूट लेवल के इश्यूज है सर। एग्जैक्टली, एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कैंसर। आप जो बोल रहे हो कि कैंसर की बात करें तो कैंसर की बात यहीं से शुरू होती है। ओ लाइफ में
स्ट्रेस अगर आप सक्सेसफुली हैंडल नहीं करोगे तो आप इधर उधर रास्ते ढूंढोगे स्ट्रेस कम करने का, एंड विच कैन हार्म यू बैक, राइट? दीपेन भी इस पे आप बताइए, बिकॉज आप डोज पे बता रहे थे सेरोटोनिन, सन एक्सपोजर, स्लीप साइकिल, ये बताइए उस पे। यस, एंडोर्फिन की बात करें तो एंडोर्फिन, जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में ही बताया कि ही इज अ जिम एडिक्ट एंड पावर लिफ्टर, राइट? सो जो मेरा एंडोर्फिन है वो मेरी एक्सरसाइज में से, मेरे वर्कआउट में से मिलता है। वेट लिफ्टिंग और एनी फॉर्म ऑफ माइल्ड, मॉडरेट और इंटेंस एक्सरसाइज, इट कैन गिव यू एंडोर्फिन्स। ओके, जो पोस्ट वर्कआउट जो फील आती है हमें कि भाई नाउ आई फील गुड, सो दैट इज योर एंडोर्फिन किकिंग इन आफ्टर योर वर्कआउट। सो वो हैप्पी हार्मोन हमें एक्सरसाइज से मिल सकता है, और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है लोगों को। मेरी तरह जिम में 1 घंटा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। दे जस्ट नीड टू रिस्पेक्ट देयर शेड्यूल, क्योंकि मेरा शेड्यूल अलग है, आपका शेड्यूल अलग है। मेरा शेड्यूल भी इतना बिजी रहता है कि मुझे भी मुश्किल से टाइम मिल जाता है 1 घंटा जिम करने के लिए, ठीक है? तो हमें अपनी फिटनेस डिफाइन करने के लिए हमें अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि मेरे लिए 1 घंटे का वॉकिंग या 1 घंटे का रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग और जस्ट मीटिंग अ फ्रेंड बाय वॉकिंग, वो मेरे लिए वर्कआउट है। मेरे लिए जिम में जाने की कोई जरूरत नहीं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलग से फायदे हैं, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी यूजफुल, मगर आपको अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर आपको फिटनेस तो मेंटेन करनी है, अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करना है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सो दैट यू डोंट गेट कैरिड अवे विद द एडिक्शंस एंड ऑल। करेक्ट, करेक्ट। आई थिंक डॉक्टर दीपेन आपने बहुत जबरदस्त बात कही यहाँ पे। एक शॉर्ट फॉर्म दिया डोज और उससे बहुत क्लैरिटी इमर्ज हुई, और ये इन जनरल लोगों को पता ही नहीं है कि ये छोटी छोटी चीजें और बातें आपको कहां से कहां लेके जा सकती है। तो दीपेन भाई, इसमें आप ये बताइए कि इन सारे जो इश्यूज आपने बताए कि जो हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड जो चैलेंजेस है, इश्यूज है, इसमें आपके डाइट का क्या रोल? डाइट इज लाइक आई टोल्ड यू, इट इज 70-80% डाइट का रोल है। और डाइट में लोग ये भूल जाते हैं कि प्रोसेस्ड फूड वो अपने शेड्यूल को मैच कर रहा है। जैसे मुझे 5 मिनट का टाइम है तो इट इज वेरी इजी टू पॉप अप अ पैकेट ऑफ अ जंक फूड एंड गेट डन विथ इट, राइट? ट्रू। मगर हमारा जो बेसिक डाइट है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है मैक्रोस की, माइक्रोस की, आई एम डीपली इन्वेस्टेड इनटू डाइट बिकॉज आई एम वेरी एक्सपेरिमेंटल विथ माई डाइट। मैंने लास्ट ईयर होम कुक फूड का चैलेंज लिया था, तो फॉर 100 days आई वॉज हैविंग ओनली माई होम कुक फूड। मेरा ट्रैवलिंग भी रहता है, तो ट्रैवलिंग में भी आई यूज टू कैरी माई होम कुक फूड। सो फॉर 100 days आई डिड नॉट ईट एनीथिंग from outside, not a single thing. Only thing that I can eat from outside is raw fruits or raw vegetable or salad. That's it. Correct. तो ऐसा 100 days मैंने 2 बार किया with the gap of only 10 days in between. Oh, okay. Yes, so I completed 2. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने डाइट में काफी एक्सप्लोर किया हुआ है, so I can actually give you some good insights about diet कि हमें मैक्रोज और माइक्रोज मैनेज करने होते हैं। एक जंक फूड जब आदमी खा लेता है तब मैक्रोज और माइक्रोज नहीं सोच रहा है, ठीक है? कि एक सिंपल चिप्स का पैकेट या एक स्वीट आपने खा लिया, एक मफिन खा लिया, तो आपकी कैलोरी को कितना इम्पैक्ट करने वाला है लेटर ऑन। सो आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई कैलोरीज एंड नॉट द रीजन दैट यू वांट टू लूज वेट तो ही कैलोरी का ध्यान रखना है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए भी कैलोरी का ध्यान रखना है। जैसे हम कैंसर की बात करें, जो आपने पूछा कि कैंसर में डाइट का क्या रोल है, ठीक है? तो डाइट अगर हम ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जो हमारी की बॉडी की मैकेनिज्म है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी की, एंटीऑक्सीडेंट्स वी नीड टू टेक केयर और किल द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स मतलब नुकसान कारक एलिमेंट जो हमारे बॉडी में वेर एंड टेयर से प्रोड्यूस होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, और वो हमारे नॉर्मल डाइट में तो मिलते ही हैं। मगर हम अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कलर वाले फ्रूट्स, जो लोग बोलते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा शायद, हारा हाची बू, ठीक है? यस, इट कम्स फ्रॉम द विलेजेस, जो जापान के विलेजेस है, जिसमें दे आर कॉल्ड ग्रीन जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां एवरेज आदमी 100 ईयर से ज्यादा जीता है। Oh yes, I just read some time back. Yes. सो 100 ईयर से ज्यादा जीते, तो उनपे एक स्टडी हुआ है साइंटिफिक के, क्या ऐसा है कि वो लोग एवरेज 100 ईयर से ज्यादा जीते हैं, 80% लोग। सो हारा हाची बू मीन्स स्टॉप ईटिंग व्हेन यू आर 80% फुल। Oh, interesting. You should not keep on eating until you feel full or bloated. You have to stop when you are 80% full, and that's how you can take care of your activity level. कई बार हमें drowsiness लगता है कि भाई हमने खा लिया, full meal हो गया, drowsiness लग रहा है, तो your efficiency, if you are working 9 to 5 and if you are taking a heavy meal, then your efficiency goes down in those post lunch hours. Correct. Right? Yes. So वो नहीं हो, उसके लिए हमें 80% full हो जाने पे खाना स्टॉप कर देना है। तो डॉक्टर दीपेन, यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि हमें 80% पे रुक जाना है, तो इसमें कोई टेक्निक या कोई नोन अप्रोच है जिससे हम इससे बदलाव लेके आ सकते हैं, या छोटी टिप्स आप कुछ यहाँ पे देना चाहेंगे? यस, 80% पे रुकना वो कहने में इतना इजी लगता है, मगर फॉलो करने में इतना इजी नहीं है जब आपका डाइट बैलेंस्ड नहीं है।
ओके जैसा आपने बताया कि गुजरात इज अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज है, क्योंकि हमारी जो गुजराती डिश होती है इट्स अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। जो पुरानी डिश हुआ करती थी इट वाज अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। Okay. जैसे पल्सीस है, वेजिटेबल्स है, सलाड है, एक छोटा सा स्वीट का पोर्शन है टू किल योर स्वीट क्रेविंग्स, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कार्ब्स इन द फॉर्म ऑफ आइदर रोटी है, पूरी है या राइस। तो उसमें से अभी ट्रांसफॉर्म होते 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 आज जो हमारी करंट गुजराती डिश है उसमें सिर्फ कार्ब्स ही बच गए हैं। Correct. लोग प्रोटीन कम करते गए हैं, सलाड पे हमारा इंडल्जेंस काफी कम हो गया है, धीरे धीरे सलाड पे कोई इतना स्ट्रेस नहीं देता। Correct. ठीक है, सो 80% पे रुकने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप बैलेंस्ड, वेल बैलेंस्ड मील इन द टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, गुड फैट भी जरूरी है बॉडी के लिए, Correct. राइट, और ये ले रहे हो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल या सलाड के फॉर्म में ले रहे हो, तो दैट विल मेक यू फील फुल आफ्टर सर्टेन टाइम। अगर आप Okay. कार्ब्स पे कार्ब्स खाते रहे हो, ठीक है, तो आप फुल फील नहीं करोगे और 80% पे रुकना आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके करेक्ट हाँ, मगर आपका Interesting. मील बैलेंस्ड है, प्रोटीन मेक्स यू फील फुल फॉर लॉन्गर टाइम्स अनलाइक द कार्ब्स। ओके सो एक वेजिटेरियन के लिए, सिंस आप ट्रेन मेडिकल सर्जन हैं, व्हाट इज द ऑप्शंस फॉर अ वेजिटेरियन इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन्स? देयर आर अ लॉट ऑफ हेल्दी ऑप्शंस फॉर वेजिटेरियंस, राइट। जैसे मैंने होम कुक फूड किया, मैं तो हाफ ब्राह्मण हूँ क्योंकि मेरी Okay. मॉम इज ब्राह्मण एंड माय डैड इज पटेल, दे हैव अ लव मैरिज। ओके, इंटरेस्टिंग या सो मेरे घर में नॉनवेज उतना अलाउड भी नहीं और काफी सारे गुजराती फैमिलीज में नॉनवेज इज स्टिल अ टैबू, राइट। Correct. हाँ, सो हमें पल्सीस में से, मतलब जिसको कठोल बोलते हैं गुजराती Correct. में, है ना, उसमें से काफी अच्छी मात्रा में, जैसे मूंग हो गए, स्प्राउट्स हो गए, Okay. और काबुली चने हैं, मूंग है और अदर पल्सीस है और लेग्यूम्स है, उसमें से मैक्सिमम प्रोटीन हमें मिल सकता है। Okay. अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कैन बी सोयाबीन्स। ओके तो वेजिटेरियन लोगों के लिए काफी सारे ऑप्शन है, क्योंकि आपको ये समझना है कि प्रोटीन का प्रपोर्शन अच्छा होना जरूरी है। प्रोटीन आप बेसिक अगर 1 ग्राम पर किलोग्राम की मात्रा से ले रहे हो और एक्टिव पर्सन, सो इट इज इनफ 1 to 1.2 ग्राम पर किलोग्राम। मतलब आपका वेट 70 किलोग्राम है तो आपको 70 से 90 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे चाहिए। Okay. यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। So is paneer a good option? Homemade paneer is a good option? Yes, homemade paneer. Yes, I'm stressing more on homemade and less on paneer because you know social media में काफी पनीर के बारे में जो एंटी पनीर कैंपेन चल रहा है कि 80%, I read some articles के 60-70% of the paneer that is available in the market which is not homemade, they are fake. Absolutely. Yeah, so अगर नॉर्मल आदमी ये सुनेगा तो they'll get scared to their death, right? कि हम क्या खा रहे हैं? सही बात है, सही बात है। इनफैक्ट हाँ, आप बाहर तो जब जाते हैं रेस्टोरेंट्स में तो आपको जहन में एक डाउट जरूर आने वाला है कि क्या मैं ये पनीर खा रहा हूँ, ये पनीर टिक्का खा रहा हूँ, क्या ये सही में हेल्दी है मेरे लिए? Exactly. So homemade paneer, like you said, is a very good source of the protein, और उसमें केजिन करके प्रोटीन रहता है। So paneer carries casein protein, so that you have to take at night, preferably at night or later hours of the day, because उस fullness ज्यादा देता है। Okay. Unlike the pulses and legumes, पनीर वाला प्रोटीन है वो fullness ज्यादा देगा and it's very high in fat. That's why I keep it at the second option. अगर high fat आप afford कर पाते हो और अगर आपको later in the day ले सकते हो, तो पनीर is a वेरी गुड सोर्स ऑफ केजिन प्रोटीन, क्योंकि केजिन का बॉडी में रिलीज एकदम स्लोली होता है। ओवरनाइट आपको प्रोटीन प्रोवाइड कर सकता है फॉर द मेटाबॉलिज्म। Okay. और So- ये चीज जानना जरूरी है कि आपने जैसे प्रोटीन का इंपॉर्टेंस बताया, प्रोटीन सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं है, करेक्ट राइट। हमारे नॉर्मल बॉडी के वेर एंड टेयर है, हमारी नॉर्मल इम्यूनिटी है, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है, और मसल मास है, वो मेंटेन करने के लिए भी, फॉर मेंटेनेंस ओनली वी रिक्वायर 1 to 1.2 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन। करेक्ट। दिस नाउअडेज आई सी के घी के बारे में बातचीत हो रही है, प्योर घी के बारे में बातचीत हो रही है, तो उस पर कुछ क्लैरिटी दीजिए कि कितना हमारे लिए सही है, ऑयल्स हमारे कितने लिए सही है, या ऑयल्स के लिए हमें क्या ऑप्शंस लेने चाहिए, तो ये थोड़ा बताइए आप। घी और ऑयल के बारे में एक कॉमन सी मिथ है जो मैं ब्रेक करना चाहूंगा कि ऑयल हम गरम खाते हैं, ओके जैसे तली हुई चीजें हैं वो ऑयल को गर्म करके बनी हुई, और घी हम ठंडा खाते हैं। Okay. जैसा रोटी पे घी लगाया हुआ है तो वो ठंडा है। Correct. घी को अगर बटर के फॉर्म में खाते हो या फ्रोजन फॉर्म में खाओ तो ठंडा है। अपने वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्योंकि अपने शास्त्र है वो बहुत रिच है नॉलेज के बारे में, उसमें मेडिकल फील्ड का, डाइट का, सबका इतना इन डेप्थ रिसर्च किया हुआ है अपने वेदों में। तो उस वेदों में लिखा हुआ है कि ऑयल हमेशा ठंडा खाना चाहिए और घी हमेशा गर्म खाना चाहिए। ओ हम एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं अभी उससे, करेक्ट। ठीक है। तो आपको घी गर्म फॉर्म में खाना है, विच इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर द फैटी एसिड्स दैट इज गिव यू। उसमें मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, काफी सारे मूफा और पूफा जिसको बोलते हैं, Okay. तो वो हायर अमाउंट में बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं इफ यू कंज्यूम घी गरम, Okay. ठीक है।
और तेल जिसमें हार्मफुल फैटी एसिड्स भी होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको हम मेडिकली बोलते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते अगर आप तेल ठंडा खाते हो तो, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज वो आपकी ब्लड वेसल्स ब्लॉक करते हैं। और नॉट ओनली कैंसर, अगर आपकी ओबेसिटी, हम डायबिटीज ले ले, ओबेसिटी ले ले, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लीवर फेलियर्स, तो सभी पे ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं। तो वो तेल में है मगर वो एब्जॉर्ब नहीं होने वाले आपके बॉडी में अगर आप तेल ठंडा खाओ तो। मगर हम जब उसको गर्म करते हैं तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स दे गेट एब्जॉर्ब मोर इन आवर बॉडी। करेक्ट, ओके। सो कितनी क्वांटिटी में घी हम लोग डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं? एंड लेट्स से फॉर एन एडल्ट हु इज 18-20 टू लेट्स से 45-50, कितना घी वो लोग डेली कंज्यूम कर सकते हैं या सब कर सकते हैं? सब लोग घी कंज्यूम कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपका वेट लॉस जर्नी चल रहा है तो उसमें घी आपको इसलिए थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा बिकॉज यू डोंट वांट अनवांटेड फैट इन योर डाइट, यू आर बेसिकली कटिंग डाउन ऑन योर फैट, ठीक है। एंड कटिंग डाउन ऑन फैट साउंड्स वेरी सिंपल बट द कॉम्प्लेक्स थिंग इज अपना मेटाबॉलिज्म रीट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ओके, मेटाबॉलिज्म रीट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको डाइट में प्रोटीन बढ़ाओगे तो आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी अप आने वाला है, जिससे आपको एट रेस्ट जो हमारी कैलोरी स्पेंड होती है वो ज्यादा स्पेंड होगी। मतलब आप काउच पे बैठे हो, टीवी देख रहे हो, फिर भी यू आर लूजिंग वेट। ओके, इंटरेस्टिंग। या सो घी जैसा आपने पूछा तो नॉर्मल आदमी दिन का 1 से 2 टेबल स्पून घी खा सकता है। ओके, ठीक है। हाँ, अगर 60 to 70 बॉडी वेट है उनका तो वो 1 से 2 टेबल स्पून घी इज रेकमेंडेड, नॉट बियॉन्ड दैट। और ऑयल, वो भी 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल कंज्यूम करें। और अगर कम मात्रा में करना है, जैसे आप मैंने बताया कि वेट लॉस जर्नी पे हो तो उससे भी कम कंज्यूम। कुछ लोग आपने सुना होगा क्रैश डाइट पे चले जाते हैं वेट लॉस करने के लिए। सो दैट इज नॉट रेकमेंडेड अनलेस इट इज बीइंग डन फॉर सम मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन के लिए कुछ डाइट में रिस्ट्रिक्ट करना है या फैट रिस्ट्रिक्ट करना है, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कोई आपको, तो ही आउट एंड आउट उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अदरवाइज अ नॉर्मल इंडिविजुअल कैन वेरी वेल ईट मॉडरेट अमाउंट ऑफ द ऑयल एंड घी बोथ अराउंड 1-2 टेबल स्पून अ डे। ओके, इंटरेस्टिंग। हमने टॉपिकों की बात की, हमने जो लोगों की बुरी आदत है उसके ऊपर बात की है। We have missed on alcohol and other aspects of we call addictions. Does alcohol correlate to cancer? Consumption of alcohol? Yes. It's a funny fact कि सोसाइटी हमारी ऐसी चीजें कंज्यूम कर रही है जिसमें इट्स रिटन ऑन द पैकेज कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, अभी हम जो मूवी देखने जाते थे उसमें जो नीचे टैगलाइन लिखी आती थी, व्हेन अ हीरो और एक्ट्रेस और एक्टर इज स्मोकिंग, उस सीन में नीचे लिखा हुआ आता था कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और अल्कोहल is injurious to it। अभी तो गवर्नमेंट ने वो भी शॉर्ट कर दिया है कि इट किल्स, टोबैको किल्स, अल्कोहल किल्स। उसके बावजूद भी लोग कर रहे हैं। तो अल्कोहल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लीवर कैंसर मोस्ट ऑफ ऑल। लीवर कैंसर, अदर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, कोलोन कैंसर, किडनी कैंसर, काफी सारे मोर देन 10 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैंसर के साथ अल्कोहल सीधा जुड़ा हुआ है। ओके, तो लोग कहते हैं अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो नींद अच्छी आती है एंड देन प्रॉब्ली नींद अच्छी आती है, तो इज इट राइट? सही बात है क्या? नो, लोग ये बात तो करते ही हैं, साथ साथ में लोग बियर और वाइन के बारे में भी देयर इज अ मिथ कि बियर तो चलता है, राइट? हाँ, तो ऐसा नहीं है। बियर इज अनदर फॉर्म ऑफ अल्कोहल विच हैज लेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल, मतलब वो डाइल्यूटेड फॉर्म में है, ठीक है। मगर जहर को अगर डाइल्यूट कर दो तो जहर ही रहता है। गुड वन। हाँ, तो बियर भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट वाइन का कल्चर जो आया हुआ है, वाइन के हम अगर पास्ट चेक करें वाइन का, तो वो वेस्टर्न कंट्रीज जो ठंडी -डिग्रीज में जहाँ टेम्परेचर होते हैं, उनके ओवर द टाइम जीन्स भी ऐसे होते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन उन लोगों में इतने हो गए होते हैं कि उनकी अल्कोहल कैरिंग कैपेसिटी, मतलब अल्कोहल को बॉडी कैसे मेटाबोलाइज करता है, लीवर पे कितना इंसल्ट हो रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है और एक्सक्रीट कितना हो रहा है बॉडी में से, तो दे आर हैबिचुएटेड टू दैट। हम वो फॉलो नहीं कर सकते कि वाइन हेल्थ के लिए अच्छा है, बियर किडनी स्टोन के लिए अच्छा है, वाइन हार्ट के लिए अच्छा है। नहीं, बोथ ऑफ द थिंग्स दे आर इंजूरियस टू हेल्थ एंड वन शुड नॉट टच अल्कोहल एट ऑल इन द नेम ऑफ हेल्थ। एब्सोल्युटली ग्रेट। आई थिंक आपने बहुत जबरदस्त क्लैरिटी के साथ और बहुत अथॉरिटी के साथ ये क्लियर कन्वे किया है। सो आई थिंक दिस विल हेल्प आवर व्यूअर्स आल्सो। लेट्स गो बैक टू फूड, बिकॉज आज जंक फूड का जमाना है, फास्ट फूड का जमाना है। तो ये जो हमारे डाइट में चेंजेस है, जिस तरह से हमने बताया कि 2 मिनट में आपको नूडल्स मिल जाएंगे या बाहर से हमने स्विगी से ऑर्डर कर दिया तो खाना आ जाता है 10 मिनट में, ये सारी चीजें किस तरह से हमारी लाइफस्टाइल पे अफेक्ट करती है और फिर किस तरह से हमें ये मेजर लाइफस्टाइल इश्यूज होते हैं, बताइए। मेजर लाइफस्टाइल इश्यू चालू होते हैं साइकोलॉजी से। ओके, जैसे इंस्टेंट ऑर्डर करना, आपने बोला कि स्विगी से फूड ऑर्डर कर दिया, ठीक है,
मगर अगर आप डीपर लेवल पे देखें, और या तो मैं इस तरह से देखता हूँ इसको कि इट्स अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम, कि जिसमें हमें सारी चीज हैंडी चाहिए। ओके सारी चीज हमें हैंडी चाहिए। वी डोंट वांट टू पुट एफर्ट्स फॉर मेकिंग आवर ओन फूड। ओके और आप अगर जानते हो तो हमें एक फ्रेंच फ्राइज से लेके लाइफ पार्टनर तक सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग यस, एक छोटी सी लाइक हाथ धोने के लिए जो डेटोल यूज करते हैं वो भी मंगवा सकते हो। और अगर आपको बैठे बैठे लाइफ पार्टनर सर्च करना है तो जीवनसाथी.com पे लाइफ पार्टनर भी सर्च कर सकते हैं। सही बात है। तो लोग जो बोलते हैं कि कनेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए, एक दूसरे के लाइफ गोल जानने चाहिए, आप कैसे ऑनलाइन किसी को पहचान पाओगे? ट्रू राइट। ट्रू। हाँ, तो लोगों का ऑन डीपर लेवल, ऑन अ सीरियस नोट, लोगों का टॉलरेंस कम हो रहा है। तो साइकोलॉजी यहाँ पे अफेक्ट होती है कि हमारे पेशेंस अफेक्ट हो रही है और हमारा टॉलरेंस अफेक्ट हो रहा है। हमारे में पेशेंस ही बची नहीं, ये पेशेंस को किल कर देता है क्योंकि मुझे 10 मिनट में चीज चाहिए। ओके, सही बात है। हम हमारे बेसिक से दूर होते जा रहे हैं कि हमारा बेसिक ये है कि किसी चीज के लिए, जैसे एक किसान था तो उसको मील होती थी, वो अर्न करनी पड़ती थी। True. You have to work in the sunlight. You have to like work your ass off to get that meal served to your table. True. और हमें वो चीजें अभी फिंगर टिप पे मिल रही है, क्योंकि ये पसंद नहीं है तो हम जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं, जोमेटो पसंद नहीं है स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं, मम्मी ने खाना बनाया है पसंद नहीं है तो हम बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसमें वो बेसिक हमारा कल्चर नहीं है। मम्मी ने जो बनाया है, जो होम कुक फूड है, दैट इज अ बैलेंस्ड डाइट, वो जो सालों से चला आ रहा है। ठीक है। जब हम डाइट की बात करते हैं तो वो बहुत पर्सनलाइज चीज हो गई। जैसे आपके घर में कुछ बनता है, मेरे घर में कुछ बनता है, और घर की जो होम मेकर फीमेल होती है, दे नो अवर इंटरेस्ट, दे नो हाउ बैलेंस योर डाइट शुड बी। तो स्विगी वाले को पता नहीं है कि व्हाट एक्चुअली योर बॉडी नीड्स एंड व्हाट डजंट। करेक्ट। अगर आप ओवरवेट हो, 110 kgs के हो, तो स्विगी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वो आपको मना कर देगा कि नहीं भाई आप फ्रेंच फ्राइज नहीं खा सकते। इंटरेस्टिंग। तो हाँ, हम जब एआई की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आ गया, तभी हमें ये समझने की जरूरत है कि इंटेलिजेंस कैन बी आर्टिफिशियल बट स्टूपिडिटी इज प्योरली नेचुरल। ओह, इंटरेस्टिंग। राइट। तो ये स्टूपिडिटी से हमें दूर रहना चाहिए कि भाई डाइट हमें मैनेज करने के लिए हमारे मैक्रोस माइक्रोस काउंट करें। आपका पर्सनल गोल क्या है वो भी देखना इतना जरूरी है। अगर मेरा गोल है, जैसे मेरी बात करूं, मैं मेरी फिटनेस जर्नी में काफी अभी इतना आगे आया हूं कि मैं अभी 2 ग्राम पर किलोग्राम तक प्रोटीन लेता हूं। ओके। नॉर्मल लोग जो बोलते हैं कि 1.5 से 1.8 ग्राम पर किलोग्राम अगर आप इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, मगर मेरा डाइट और अभी मेरी एक्टिविटीज ही इतनी है कि रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ट्रायथलॉन के लिए अगर तैयारी करनी है, अपने बॉडी और माइंड को ट्रेन करना है, तो मसल लॉस इतना होता है। जितनी लॉन्ग एंड्योरेंस एक्टिविटी होती है उसमें मसल लॉस ही इतना होता है कि मुझे बियॉन्ड द रिकमेंडेशन जाके एथलीट लेवल का प्रोटीन लेना पड़ेगा। ओह, ओके ओके ओके। ठीक है। और मेडिकली सेफ रहना है। ठीक है। रिकमेंडेड से अगर आप बाहर जा रहे हो तो कुछ ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं जो आपको करवाने पड़ते हैं, जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। प्रोटीन अगर आप कुछ मात्रा से ज्यादा लेते हो तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अगर आपका सन एक्सपोजर अच्छा नहीं है, आपकी लाइफ में या आपकी डेली डे इन एंड डे आउट में सनलाइट एक्सपोजर ही नहीं आता है, तो आपका विटामिन D3 लेवल कम होना चालू हो जाता है। आप अगर डाइट में नॉनवेज इंक्लूड नहीं है, आप अगर प्योर वेजिटेरियन हो, तो वेजिटेरियन इज वन ऑफ द कॉजेज फॉर विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ओके। यस, क्योंकि रेड मीट में से जितना B12 मिलता है उतना वेजिटेरियन सोर्सेज में से मिलता ही नहीं है, और मिलता है तो एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो उन लोगों को अगर डेफिशिएंसी है तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप विटामिन B12 के इंजेक्टेबल या टेबलेट के फॉर्म में सप्लीमेंट लीजिए। सन एक्सपोजर नहीं है तो सन एक्सपोजर बढ़ाए। विटामिन D3 कम है तो कैल्शियम और विटामिन D3 की टेबलेट लीजिए। प्रोटीन कम है, अगर आपको डाइट में से नहीं मिल रहा है तो काफी सारे वेगन सोर्सेज भी अवेलेबल है प्रोटीन के, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं और उनको वे प्रोटीन भी नहीं लेना है, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो वेगन ब्राउन राइस एक्सट्रैक्ट प्रोटीन या पी प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी मार्केट में अवेलेबल है। ओके, फाइन, great. We have touched on food, we have touched on addictions. Now let's come to the lifestyle. And the biggest issue today is stress, anxiety, depression. ये सारे जो man made issues हैं, इसका ultimately कैंसर से कुछ नाता है? Is it related? Yes, like you said, it is directly related to your stress levels. कि आपका स्ट्रेस लेवल अगर ज्यादा है तो बॉडी आपकी डे इन एंड डे आउट एक्टिविटी में से भी रिकवर नहीं हो पाता। और जब बॉडी रिकवर नहीं हो जाता है तो उसकी वेयर एंड टेयर बढ़ती जाती है। जैसे फ्री रेडिकल्स बॉडी में जनरेट होते हैं, यार आपको कुछ एक्सपोजर हुआ, लेट अस से कि आप अगर टोबैको कंज्यूम कर रहे हो, टोबैको नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो बात ही अलग है, मगर जो आदमी टोबैको कंज्यूम कर रहा है उसको जो निकोटीन का इंसल्ट मिल रहा है उसको लड़ने के लिए बॉडी इम्यूनिटी चाहिए, राइट? ओके।
यस, सो वी शुड रिमेम्बर कि मूवमेंट इज द की। मूवमेंट है, जैसे Movement is the key. मूवमेंट मेरा साइकिलिंग ले लो, रनिंग ले लो, जॉगिंग ले लो, मूवमेंट इज एक्चुअली द की टू डील विद ऑल द मैन मेड प्रॉब्लम्स। जो स्ट्रेस लेवल है हमारे, वो काफी सारे स्ट्रेस लेवल इनएक्टिविटी को एक्टिविटी में कन्वर्ट करने से बदल जाएंगे। Okay. ठीक है, जैसे आपकी कोपिंग मैकेनिज्म जो होती है, वो कोपिंग मैकेनिज्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मूवमेंट। Movement, when you okay. jog, yes, when you jog the blood supply, लोग जो बोलते हैं कि एक्सरसाइज से कैंसर का रिस्क कम होता है, तो को रिलेशन ये है कि एक्सरसाइज करोगे या कोई भी मूवमेंट करोगे तो बॉडी में ब्लड सप्लाई अच्छे से एस्टेब्लिश होगा और आपका ब्लड सप्लाई बढ़ता है टू द वाइटल ऑर्गन्स। सो योर वाइटल ऑर्गन्स, नेमली द लंग, हार्ट एंड द अदर टिश्यूज और द मसल टिश्यू, दे गेट द गुड ब्लड सप्लाई and they are able to clear out the free radicals and the bad things more efficiently, और वो आपको कैंसर से दूर रख सकता है। करेक्ट। मैंने कहीं पढ़ा था कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। आपको हर 20-30 मिनट के बाद चलना चाहिए, एटलीस्ट आपको 25-50 कदम चलना चाहिए। तो इस पे कुछ बताइए। Yes. बिकॉज आज आईटी है, या अगर आप बिंज वॉच कर रहे हैं, 3-4 घंटे आप वेब सीरीज देख रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, आप मैच देख रहे हैं, तो उस पे कुछ बताइए आप। यस, जैसे वर्क फ्रॉम होम कल्चर अभी बढ़ रहा है, ठीक है, सो मेनी पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो उसमें तो मूवमेंट है ही नहीं इंक्लूड। आपको डेस्क पे बैठना है या लैपटॉप पे बैठना है, और अगर आप बात करें कि लीजर टाइम है आपका जिसमें आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो और तो बॉडी को जितना सीडेंटरी लाइफस्टाइल से आप हैबिचुएट करोगे तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म, बॉडी एक रिलैक्स मोड में आ जाता है। ओके, ठीक है, बॉडी रिलैक्स मोड में मेटाबॉलिज्म डाउन करेगा, मतलब कैलोरीज यू बर्न एट रेस्ट विल बी डिक्रीजिंग। ओके, और बॉडी इतना एनर्जी ज्यादा स्टोर करेगा कि अभी एक्टिविटी नहीं है, तो अभी तो काम नहीं है, कोई कैलोरी कंज्यूम करने की, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो अभी जितना भी आप खाओगे, जैसा एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि एक रोटी आप खा रहे हो और एक रोटी वो खा रहा है जो लाइफ में काम नहीं करता है, बैठा रहता है, टोटली इनएक्टिव रहता है, और वही एक रोटी मैं खाता हूँ, तो तीनों के एक्टिविटी लेवल के हिसाब से वो बॉडी में रोटी एब्जॉर्ब होगी। Okay. एक रोटी में, हाँ, एक रोटी में कैलोरी चाहे कितनी हो, आपका बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगा वो आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट पे डिपेंड करता है। करेक्ट, इंटरेस्टिंग। नाउ सिंस यू हमने सारे एस्पेक्ट्स पे बात किए, तो अगर कोई, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि कैंसर टिपिकली 40-50s में डिटेक्ट होता है, तो अगर कोई 20-30 साल का है, उसे क्या केयरफुल होना चाहिए, इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी लाइफ में ऐसे बड़े चैलेंजेस ना आए इन टर्म्स ऑफ कैंसर एंड ऑल दैट, तो क्या परहेज करना चाहिए उन्हें? So youngest person that I've operated for the cancer was 17-year-old guy. Oh, And the oldest person that I've operated so far is 88-year-old guy. okay. And within this spectrum, I've operated the people from all the ages. जैसे हम एक्सट्रीम करें, बाद में हम बीच वाले स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। एक्सट्रीम की बात करें तो जो 17-year-old था उसको मैंने हिस्ट्री में पूछा कि भाई आप, उसका मुंह इतना ही खुल रहा था, अराउंड 2 mm 3 mm। मैंने पूछा कि तुम खाना कैसे खाते हो, है ना, तो उसने बोला मैं ज्यादातर लिक्विड ही लेता हूँ या सेमी सॉलिड चीजें लेता हूँ, मैं फुल सॉलिड तो नहीं खा पाता हूँ क्योंकि मुंह नहीं खुल रहा है तो अभी। तो मैंने बोला ओके फाइन, तो आपका टोबैको एडिक्शन कब से है, आपकी एज 17 है तो टोबैको, तो उसने बोला 7 साल या 8 साल से मैं टोबैको खा रहा हूँ, और वो डीपली रूटेड है चीज सोसाइटी में। कुछ हमारे यहाँ कुछ गांव ऐसे भी है जिसमें पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को तंबाकू लेने भेजते हैं। करेक्ट, ठीक है, सो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल लाइफ इटसेल्फ। अगर आप टीन एज में हो तो ऐसे एडिक्शन से दूर रहना चाहिए। मेरा युवाओं को यही मैसेज रहेगा कि आप एडिक्शन से दूर रहे, अपना एक्टिविटी लेवल सुधारे जिससे आपको एडिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर आपका एक्टिविटी लेवल अच्छा है, आप अगर स्ट्रेस को अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हो बाय टेकिंग केयर ऑफ योर हैप्पी हॉर्मोन्स, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट विद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड द प्रोटीन, तो आपको एडिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज है जो लाइफस्टाइल में हमें ध्यान रखनी है कि ओबेसिटी causes so many different type of disease including cancer। हाँ, तो हमें ओबेसिटी से भी दूर रहना है। ठीक है, आपका एक हेल्दी वेट बना रहे वो भी इतना ही जरूरी है जितना अपना बैलेंस डाइट जरूरी है। करेक्ट। अगर हम मिडिल एज की बात करें कि 50 to 60 जो आपने अलग एज ग्रुप बताया, 50 की 60 एज ग्रुप वो ऐसी एज है जिसमें आपकी इम्यूनिटी, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म आपकी काफी ट्रांसफॉर्म होती है। जो टीन एज है 35 ईयर है, उसको आप अपने 50-60 ईयर ओल्ड गाय से कंपेयर नहीं कर सकते। करेक्ट, ठीक है, क्योंकि अगर मैं दोनों की सर्जरी करूं तो दोनों का हीलिंग पावर भी अलग अलग रहता है। Correct. तो आपको डाइट को उस बैलेंस की दिशा में आगे ले जाना चाहिए जिसमें यू टेक केयर ऑफ योर प्रोटीन। ठीक है, मसल मास वो ऐसी चीज है कि एवरी ईयर आफ्टर द एज ऑफ 35 अ नॉर्मल इंडिविजुअल लूजेस 1% ऑफ द मसल एवरी ईयर। ओके, तो वो मसल लॉस है वो गारंटेड है। ओके। आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप अगर एक्टिविटी लेवल अच्छा रखो, मतलब मसल्स को एक्टिव रखो। जो लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि जिम है वो टीनेजर्स के लिए या ओनली बॉडी बिल्डर्स के लिए। ओके।
ठीक है। स्ट्रेन ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी इंडिविजुअल बिकॉज वो सीधा बोन हेल्थ को अफेक्ट करता है। ओके। आप अगर टिश्यू को रेजिस्टेंस दोगे, वो ब्लड सप्लाई बढ़ाएगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसका रेजिलियंस बढ़ेगा। सो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ओवरऑल हेल्थ एंड इम्यूनिटी। तो 50-60 की एज पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा डाइट वही बैलेंस बना रहे और हमारा एक्टिविटी लेवल भी विथ रिटायरमेंट कम नहीं हो, इससे काफी सारे रोगों को इन्विटेशन मिले। करेक्ट। और इन सब इन द कंप्लीट गैमेट ऑफ ऑल दिस, यहाँ पे रिलेशनशिप्स का क्या रोल है? बिकॉज एक इमोशनल लेवल पे एक आपका एंड्योरेंस होता है, एक आपने शुरुआत में बताया कि सबका टॉलरेंस कम हो गया है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स क्या रोल प्ले करते हैं? रिलेशनशिप्स इज पार्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ एज वी नो, राइट। जो मैच्योरिटी हम और हेल्थ बोलते हैं, तो इमोशनल मैच्योरिटी और इमोशनल हेल्थ वो भी एक चीज है जो हमें हैंडल करनी है डे इन एंड डे आउट। अभी की लाइफ में वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, पर्सनल स्ट्रेस होता है, तो उसको आप एक्सरसाइज से हैंडल कर सकते हो टू बीट द स्ट्रेस। और टेकिंग केयर ऑफ इमोशन स्टार्ट्स विथ एक्सेप्टिंग द मीडियोक्रिटी। वो हमें नहीं सिखाया जाता है, हमें मीडियोक्रिटी कैसे एक्सेप्ट करनी है वही हमें सिखाया नहीं जाता है, राइट। जो लोग सोशल मीडिया अभी इतना डीपली एनरूट हो गया है कि लोग सोशल मीडिया पे देख के अपने लाइफ पार्टनर के पास से अथवा तो रिलेशनशिप में जिसके भी साथ है उसके पास से ड्रीमी चीजें एक्सपेक्ट करने लगते हैं। दे लूज द टच विद द रियलिटी। करेक्ट। और जब आप रियलिटी से दूर जाने लगते हो तब वो सारे फैक्टर जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग में लैकिंग है, जैसे पेशेंस, मैंने बोला कि पेशेंस लोगों में बहुत कम है, टॉलरेंस कम है बिकॉज ऑफ द सोशल प्रैक्टिसेस नाउ, क्योंकि हमें सब चीज हैंडी मिल रही है। तो हमें तो हमें सरेंडरिंग और एक्सेप्टेंस, दीज आर द कीवर्ड्स टू कैरी एनी हेल्दी रिलेशनशिप। सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर टू व्हाट? सरेंडर टू पर्सन? नो, यू हैव टू सरेंडर टू द फीलिंग ऑफ लव एंड फीलिंग ऑफ हेल्दी कोहैबिटेशन। जो आप बात कर रहे हो कि एक अगर रिलेशनशिप में है तो मीडियोक्रिटी वो भी रिलेशनशिप का पार्ट है। इट्स नॉट गोइंग टू बी पिंक ऑल द डे, राइट। देयर विल बी स्ट्रगल्स, देयर विल बी फाइट। सो टू डील विथ इट, इमोशनल मैच्योरिटी वो काफी जरूरी चीज है। और उसको मैं सीधा एक्सरसाइज से या एंड्योरेंस ट्रेनिंग से लिंक करना चाहूंगा कि अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, या अगर आप विग्रस एक्सरसाइज या इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको वो भी सिखाता है कि देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन यू फील द पेन, ठीक है। तो जब पेन के बियॉन्ड पुश करने की जरूरत पड़े तभी आपको ये इमोशनल रेजिलियंस और मेंटल रेजिलियंस काम में आएगा। करेक्ट। सिंस यू मेंशन्ड, आपने बहुत शानदार चीज कही कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सरेंडर करना है। तो क्या एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज ए ट्रेन्ड कैंसर सर्जन, आप बहुत मेडिकली कनेक्टेड हैं, आपके बैकग्राउंड में सारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं आपके फैमिली में, तो क्या आप सरेंडर के हिसाब से मानते हैं कि मेडिटेशन का इसमें कोई मेजर रोल है? डू यू बिलीव इन हायर पावर? यस, जैसा हम प्रे करते हैं, राइट। Okay. तो नॉर्मल आदमी जो प्रे करता है, व्हाट डू यू थिंक इज द प्रेयर? प्रेयर इज अ सरेंडर टू योर हायर सेल्फ। जैसे हम सोचते हैं कि ये चीज है वो मेरे कंट्रोल में है और कुछ चीज ऐसी है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। करेक्ट। ठीक है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनएक्टिव प्लस एक्टिव। ऐसा नहीं है कि हमें प्रेयर करके बैठ जाना है कि ओके अभी तो प्रेयर कर दी तो सभी ऊपर वाले के हाथ में, अभी हम तो क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इट इज इनएक्शन। इनएक्शन वो चीज है जो पार्ट आपने सरेंडर कर दिया है, मगर इट एम्पावर्स यू इन अ वे कि आप सरेंडर करोगे तो आप अपनी फुल फंक्शनलिटी पे काम कर पाओगे। दैट्स व्हाई द सरेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन। जैसे प्रेयर की और मेडिटेशन की आपने बात की, तो प्रेयर और मेडिटेशन हमें वही सरेंडरिंग इन द मूवमेंट सिखाते हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज सरेंडरिंग इनटू द मूवमेंट, जस्ट बी। जैसे वो बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग दैट यू चेज, और हैप्पीनेस इज नॉट अ समथिंग कि जिसका पाथवे होता है कि ये रास्ता हैप्पीनेस को जाता है। हैप्पीनेस खुद ही एक रास्ता है। करेक्ट। हैप्पीनेस इज व्हाट यू फील। हाँ, हैप्पीनेस इज व्हाट you feel, और happiness is what you choose to feel. Correct. Right? So happiness is a conscious choice, और happiness हमें चूज करने के लिए we need to surrender. ये सिचुएशन में मैं हूँ, इतनी चीज मेरे हाथ में है और इतनी चीज मेरे हाथ में नहीं है। Once you are sorted about this proportion of what you can control and what you can't, then only you can function fully on the things which you can control. Great, interesting. I think आपने एक और इंटरेस्टिंग बात कही है। Before we delve into your music, your fitness, your social media journey, कुछ एक दो सवाल है जो आपकी मेडिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। बिकॉज आपने इतनी लंबी करियर में ऐसे कुछ केसेस देखे होंगे जहां पे आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि यार ये मुझे इमोशनली चैलेंज कर रहा है, ऐसा कोई ट्रिकी केस, ऐसा कोई स्पेशल केस, कोई सेलिब्रिटी, कुछ अनसर्टन चीजें जहां पे आपको लगा हो कि दिस इज चैलेंजिंग मी। यस, जैसे मैं एक पास्ट एक्सपीरियंस की बात करूं, वो पेशेंट का नाम भी मेरे नाम से जुड़ता हुआ था, दीपन करके नाम था वो पेशेंट का। सो व्हेन द गाय अप्रोच मी, ही टोल्ड मी अ वेरी सेंसिटिव थिंग कि अभी तो
आपने हिडन नेक कैंसर डायग्नोस कर दिया और आप मुझे सर्जरी एक्सप्लेन कर रहे हो, आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये साइड का जॉ निकालना पड़ेगा एंड ऑल दैट, मगर डू यू नो माय प्रोफेशन, आई एम अ सिंगर, Oh, आई एम अ सिंगर। सो वही हाई पिच पे वो गुजराती सिंगर गरबा करता था, वो लोकल फंक्शंस में जाता था, स्टेज परफॉर्मेंसेस करता था, पॉडकास्ट बनाता था, ऑनलाइन अपने सॉन्ग्स और वो सब सर्कुलेट करता था। तो उसने बोला कि मेरी तो पूरी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल तीनों लाइफ खत्म हो जाएगी डॉक्टर, अगर आप ये सर्जरी कर दोगे, मेरा वॉइस चला जाएगा। सो दैट इज वेयर आई फेल्ट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हिम कि आपके न्यू नॉर्मल्स डिफाइन होंगे। समझो, okay. आप जो नॉर्मल लेके मेरे पास आए हो, डॉक्टर भगवान होता है, इस सब मिथ्स, राइट। डॉक्टर भगवान होता तो सिर्फ सिर पे हाथ घुमा के बोल देता कि जाओ आपका काम हो गया। डॉक्टर को तथास्तु। 8 घंटे तथास्तु से काम हो जाता, 8 घंटे 10 घंटे लंबी सर्जरी नहीं करनी, राइट। मगर सर्जरी करके हम जब पेशेंट को क्योर करते हैं तो हमारी एज अ सर्जन ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिजायर होती है कि हम उनको उनकी प्रोफेशनल, पर्सनल और सोशल लाइफ में उनके न्यू नॉर्मल्स के साथ वापस भेजें, ठीक है। और उसके लिए उनको ट्रेन करें कि भाई आपका गाना बंद नहीं होगा, इट इज जस्ट अ माइलस्टोन इन योर जर्नी and you are going to get stronger and more trained for your singing, right? So हमने सर्जरी की और साथ में प्लास्टिक सर्जरी भी की, very same patient that I'm talking about, and today he sends me regularly his podcasts and his performances videos. Oh, He's still interesting. singing, yes, and he's able to sing at the very same pitch and everything. Oh, interesting. It's an It's a achievement. milestone. It's an achievement for him, and I feel very proud when I see him singing and living and leading his normal, respectable life. हाँ, आपने ये जो एग्जांपल दिया वहीं से उभर के आता है कि जिस तरह से आपने उनके जो पर्सनल चैलेंजेस थे उसको डील किया, आपने उन्हें इमोशनली गाइड किया, आपने उनके न्यू नॉर्मल्स के बारे में बात की, उनकी सर्जरी की और उसके बाद आपने उन्हें न्यू नॉर्मल वाली बेहतरीन लाइफ उन्हें प्रदान की और आज वो इतने ही खुश है। तो क्यों ना वो आपको डॉक्टर के साथ साथ भगवान समझेगी, बिकॉज आपने उनको वो करके दिखाया है। Yes, I am just a mirror. Let me tell you कि डॉक्टर या कोई आपको जिसको गुरु मानते हो, ठीक है, जिसको गुरु मानते हो और जिस पे आप सरेंडर करते हो, तो जब भी आप किसी को, कोई पर्सन को या कोई आइडियोलॉजी को या कोई थियरी को समर्पित होते हो या सरेंडर करते हो, सो दैट कैन एक्ट एज अ वेरी गुड मिरर. You know, it works as a mirror so that you can see yourself very clearly in that mirror. When you surrender, na, then you can get a better picture about yourself, your instincts, your ethics. आप में जो नेगेटिव चीजें हैं वो भी आपको अच्छे से दिखेगी. Once you surrender, you'll get to know कि ये मिरर में मुझे वो चीजें दिख रही है जिसपे I need to work on. मेरे एथिक्स अच्छे नहीं है तो मुझे एथिक्स पे काम करना है. मेरे डिसीजन पे, like I said, I surrender to higher power जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. And I basically surrender to my long एंड्योरेंस एक्टिविटीज, जिसमें वो जो बोलते हैं ना कि इसमें पूरा सोल लेवल तक आपको डेडिकेटेड रहना है. ओके, मेडिकल डॉक्टर, कैंसर सर्जन, टॉक अबाउट द सोल, ग्रेट, इंटरेस्टिंग. आप किसे गुरु मानते हैं मेडिकल प्रोफेशन के अलावा? मेडिकल प्रोफेशन के अलावा अगर हम गुरु की बात करें तो मेरा म्यूजिक में मेरे गुरुजी हैं, जो यस, जिनके पास से मैं अभी तबला सीख रहा हूँ. एंड आई बिलोंग टू पंजाब घराना, जो उस्ताद जाकिर हुसैन के फादर उस्ताद अल्लाह रखा खान ने फॉर्म किया है, वो पंजाब घराना. ओह, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग. हम इस पे कंटिन्यू करेंगे. जस्ट अ लास्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ योर मेडिकल बैकग्राउंड. ऐसे कोई स्ट्रेंज इंसिडेंसेस जहां पे जैसे पेशेंट्स और उनके फैमिली प्रे करते हैं कि ये सर्जरी अच्छे से हो जाए, और हमने वो पॉइंट पे बात भी कर ली कि आप सरेंडर करने में मानते हैं. डू यू एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी, एज अ मेडिकल डॉक्टर, एज अ कैंसर सर्जन, कहीं पे आपने ऐसा सोचा हो कि ये सर्जरी अच्छे से हो जाए, मैं एक माइंडसेट के साथ जा रहा हूं कि यहाँ पे अच्छे परिणाम आए, ऐसा कभी आपने फील किया है? यस, कभी नहीं, काफी बार फील किया है और डे इन एंड डे आउट ये फील होता रहता है, क्योंकि हमारे पास काफी सारे अलग अलग तरीके के पेशेंट आते हैं, ठीक है. उसमें से वन सब ग्रुप व्हिच आई कैन मेंशन इज कि जो लोग एडवांस डिजीज लेके आते हैं, करेक्ट, ठीक है, जिसका बुक में अगर आप पढ़े तो एडवांस स्टेज में, अगर आप स्टेज 4A या स्टेज 4B की बात करें तो उसमें लिटरेचर में, बुक में लिखा हुआ है रिकरेंस रेट इज अराउंड 60 to 70%. बट बिलीव मी, एज अ डॉक्टर और एज अ कैंसर सर्जन, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट फिगर, ठीक है, मगर वो मेरे हाथ में नहीं है. करेक्ट, ठीक है, तो तभी ये पॉइंट ऑफ सरेंडर या क्रॉस रोड ऑफ सरेंडर वर्सेस एक्शन, एक्शन वर्सेस इन एक्शन, जो मैंने बताया कि एक्शन पार्ट क्या है कि उसकी पेशेंट की मैं सही सर्जरी करूं, उसको कैंसर फ्री करूं, उसको कैंसर का रिकरेंस रेट कम करने के लिए जो भी रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, थ्रू आउट ऑल द मेडिकल ट्रीटमेंट में गाइड करूं. मेरे एथिक्स, मतलब जो हम सर्जरी डिलीवर करते हैं या क्वालिटी डिलीवर करते हैं, उसमें मैं नो कॉम्प्रोमाइज वाला फोटो बनाए रखूं कि इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा. पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कैंसर क्योर इज ऑफ द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. वो जो नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं, हम सबके कुछ नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं, राइट.
तो वो नॉन नेगोशिएबल्स पे मैं स्टेडी रहूं, और उसके बाद जो मैंने बताया कि रिकरेंस रेट इतना सारा करने के बाद, इतना सारा एफर्ट डालने के बाद, गाइडेंस देने के बाद भी रिकरेंस रेट इज नॉट गोइंग टू चेंज 60 to 75%। तो उसके लिए मैं अपना खुद का एज अ सर्जन एक्सेप्टेंस डेवलप करूं कि कुछ चीजें हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वो ही एक्सेप्टेंस पेशेंट में भी डेवलप करूं, ताकि वो लोग डर में नहीं जिए कि हमें कैंसर हो जाएगा, हमें फिर से कैंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कैंसर मुक्त हो रहे हैं, मतलब कैंसर को हरा के वापस अपनी लाइफ में नॉर्मल वापस जा रहे हो, तो यू शुड नॉट गेट स्कैर्ड ऑफ दीज थिंग्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जिनके काउंटेबल डेज या काउंटेबल मंथ्स और ईयर्स बाकी बचे लाइफ के। सो इमेजिन द प्रेशर ऑफ डीलिंग और कैरिंग आउट दैट कन्वर्सेशन विद देम। सो वी ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि वो हमारे हाथ में नहीं है, हमसे जो प्रयत्न हो सकते हैं वो कीमोथेरेपी के फॉर्म में या इम्यूनोथेरेपी के फॉर्म में, वो तो हम कर ही रहे। मगर इतना बोलने के बाद भी जो हमारे पावर में नहीं है उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो वी कैन एड लाइफ टू अवर डेज इफ वी कैन नॉट एड डेज टू अवर लाइफ। ओह, इंटरेस्टिंग। राइट। सो वो डेज में लाइफ कैसे ऐड की जाए? तो डेज में लाइफ ऐड करने के लिए यू हैव टू बी इन दैट एक्सेप्टेंस वाला फेज कि अभी जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम हैप्पीनेस बनाए रखें, अपना नॉर्मल एक्सेप्टेंस जो बेसलाइन एक्सेप्टेंस आदमी का होता है उसमें मेडिकल कंडीशन को एक्सेप्ट करें और ग्रेसफुली अपनी लाइफ लीड करना आगे चालू रखे। यू कैन नॉट कीप ऑन काउंटिंग डेज के आज मेरा लास्ट दिन होगा। आपको भी नहीं पता, मुझे नहीं पता हम कितने दिन कितने साल लेके दुनिया में आए। तो वो आपको भी नहीं पता एज अ पेशेंट कि आपके पास कितने दिन बचे हैं। तो हर एक दिन आप वो सोचने में वेस्ट नहीं करें कि अभी क्या बचा है, क्या होगा। सो वो फियर ऑफ अननोन होता है। हमारी एज अ डॉक्टर, एज अ कैंसर सर्जन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो हम फियर ऑफ अननोन से वाकिफ करें पेशेंट को, ताकि वो फियर ऑफ अननोन को एक्सेप्टेंस और रेजिलियंस के साथ डील कर पाए। करेक्ट। ऐसी सिचुएशन में जब आप एक क्रिटिकल इल पेशेंट को ट्रीट करते हैं, आप उनसे मिलते हैं, उनके परिवार के रिएक्शंस देखते हैं, और जब आपको तो अंदर से पता ही है, बिकॉज आपको ज्ञात है कि ये बहुत मुश्किल केस है, इनका समय आप जानते हैं, ऐसे सिचुएशन में आपका माइंडसेट क्या होता है? व्हेन यू गो बैक टू योर पर्सनल स्पेस, अगर आप अपनी पर्सनल समय के लिए जाते हैं, उस वक्त आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है और आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली यू आर अ ह्यूमन बीइंग। क्या, बट आई वुड लाइक टू डिफर फ्रॉम व्हाट यू से। उसको ओवरकम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत पड़ती है। ओके। कि इट हम्बल्स यू डाउन, यू नो, एज अ ह्यूमन बीइंग इट हम्बल्स यू डाउन कि कुछ चीजें हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सो ये फैक्ट अगर हम डीपली एक्सेप्ट कर ले कि कुछ चीज है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हम जो चीजें कंट्रोल में है उसको एग्रेसिवली डील कर सकते हैं। ओके। सो रादर देन मेकिंग मी वीक, ऐसे क्रिटिकली इल पेशेंट के साथ इमोशनली वीक फील करने से मैं पूरा रिवर्स फील करता हूँ। आई फील इमोशनली एबल्ड, कि मेरे इमोशंस और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि भाई इससे नहीं डरना है। आपकी जो बिलीफ है, आपकी जो वैल्यू सिस्टम है, कंप्लीटली 180 डिग्री ऑपोजिट साइड पे बता रहे हो आप, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली makes you a different person, or that's what makes you completely better cancer surgeon. Yeah, and we should understand that it's an irony कि हमें इतनी नेगेटिव चीज में से हमारा एनर्जी सोर्स या पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ रही है। हमें पॉजिटिव चीजों में से तो पॉजिटिविटी और एनर्जी मिलती है, ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मगर इतनी नेगेटिव चीज है जिसमें हम लाइफ एंड डेथ की बात कर रहे हैं, तब हमें ये जानना जरूरी है कि डेथ इज द ओनली थिंग दैट इज प्रोमिस्ड। इनएविटेबल। लाइफ इज नॉट प्रोमिस्ड, ओनली डेथ इज प्रोमिस्ड। लाइफ प्रोमिस्ड नहीं है। क्यों प्रॉमिस नहीं है? कि लाइफ आपके हाथ में दी गई है। आपको किसी ने या मुझे किसी ने प्रॉमिस नहीं दी कि ये अच्छी लाइफ होगी, तो प्रॉमिस है। मगर डेथ आपको भी प्रॉमिस है और मुझे भी प्रॉमिस है। करेक्ट। ठीक है, तो हमें वो प्रॉमिस अपने आप से करनी है कि लाइफ अच्छी होगी। वो प्रॉमिस मैं दे रहा हूँ, डेथ वाली प्रॉमिस तो भगवान ने दे दी। करेक्ट। तो लाइफ वाली प्रॉमिस हम दे के उसको फुल ऑफ लाइफ बनाए, कि हम हमारा एक्सेप्टेंस फुल रखें और हमारे एनर्जी लेवल, जैसा बोला कि आप वापस जाते हो, मैं मेरी पर्सनल स्पेस में वापस जाता हूँ आफ्टर डीलिंग विद सच नेगेटिव थिंग, जिसमें मुझे ऐसा न्यूज कम्युनिकेट करना पड़ता है जिसमें आई एम टॉकिंग अबाउट इनक्योरेबिलिटी, इनऑपरेबिलिटी, या किसी के चुनिंदा दिन बाकी रह गए उसकी बात करता हूँ। सो व्हेन आई गो बैक, सो आई गो बैक टू माय पर्सनल स्पेस एज अ हम्बल्ड पर्सन, कि अभी हम्बल रहना है। ईगो स्टैंड्स नोवेयर, समझिए। आप अगर ईगो रखोगे तो आप रियलिटी से दूर ही होने वाले हो। देयर इज नो वे दैट यू कैन स्टे क्लोज टू रियलिटी एंड स्टिल हैव ईगो। ओह, इंटरेस्टिंग। ओके, आई थिंक डॉक्टर दीपेन, आपने बहुत डिटेल में जाके लाइफस्टाइल, हेल्थ इश्यूज, कैंसर डायग्नोसिस, डाइट, लाइफस्टाइल पे बात की है। So let's go out of this and let's talk about your other side, which is music. I think music आपका चॉइस कैसे बना?
आपको कब से म्यूजिक में इंटरेस्ट है और अभी आप क्या करते हैं? अनलाइक व्हाट पीपल बिलीव कि भाई अभी इतना बिजी ऑन्को सर्जन है और फिर भी म्यूजिक कर रहा है तो मतलब पक्का पैशन होगा। सो ये प्रोफेशनली तो ऑन्को सर्जन बन गया मगर पैशन इसका म्यूजिक ही है, तो ऐसा नहीं है। माई पैशन इज सर्जरी ओनली, सो सर्जरी इज माई फर्स्ट लव। ओके। एंड म्यूजिक कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, सर्जरी Okay. फर्स्ट लव है तो म्यूजिक की एंट्री कैसे हुई कि सर्जरी अच्छी करनी होगी या मुझे एक अच्छा सर्जन बनना होगा, तो भी म्यूजिक इसलिए जरूरी है बिकॉज इज द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर दैट आई फाउंड इन माय लाइफ। ओह एब्सोल्युटली, सही बात है आपकी। यस, क्योंकि म्यूजिक और सर्जरी इतना सारा इंटर रिलेटेड है कि वो आपको ये भी सिखाता है कि मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट करो। ओके। हमें यूजुअली इन आवर लाइफ वी चेज एक्सेलेंस, हमें इसमें एक्सेलेंस चाहिए, हमें इसमें एक्सेलेंस, इसमें मीडियोक्रिटी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि भाई आप इसमें नॉट सो गुड हो या मीडियोकर हो, मगर फिर भी इट्स ओके टू बी मीडियोकर। ओके। ओह तो म्यूजिक मुझे वो सिखाता है कि मैं सर्जरी में जितना एक्सपर्ट हूँ, सर्जरी की मेरी जो डिग्री है, सर्जरी की मेरी जो ट्रेनिंग है, उससे पूरा 180 डिग्री म्यूजिक में आई एम स्टिल अ बिगिनर और लर्नर। ओके। तो वो लर्नर की आपकी जो इंस्टिंक्ट बनी रहती है दैट वर्क्स एट मोर देन वन फ्रंट, इट वर्क्स एट इमोशनल फ्रंट, पर्सनल फ्रंट, सोशल फ्रंट एज वेल एज द प्रोफेशनल फ्रंट। Okay. ठीक है, तो मेरी म्यूजिक की जर्नी चालू हुई थी एज अ स्ट्रेस बस्टर इन 2010। Okay. मेरी इंटर्नशिप तब तो चालू थी, तो इंटर्नशिप इज यूजुअली द करियर डिसाइडिंग ईयर। Okay. तो तब आपकी करियर आगे की डिसाइड होती है कि भाई इंटर्नशिप खत्म की, आपने एंट्रेंस एग्जाम दी और अभी आप ब्रांच चूज करोगे। तो तभी मेरे करियर डिसाइडिंग ईयर में मैंने म्यूजिक को एज अ स्ट्रेस बस्टर इंट्रोड्यूस किया था लाइफ में कि हमें हेल्दी माइंडसेट के साथ अगर आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप मैं बताऊं आपको तो मेरा शेड्यूल रहता था, आई यूज्ड टू रीड फॉर मोर देन 16-18 आवर्स अ डे। ओके। एट माई पीक टाइम आई यूज्ड टू रीड फॉर 16-18 आवर्स। तो इतना स्ट्रेस आदमी रहेगा, अंडर प्रेशर रहेगा, तो स्ट्रेस बस्टर भी होने चाहिए। तो देन दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग द गिटार। Okay. And guitar was my first instrument. Okay. Then I was also having 2 bands जिसमें मैं एक में गिटारिस्ट था और एक में ड्रमर था। डॉक्टर दिपिन हु इज अ गिटारिस्ट हु इज अ ड्रमर आल्सो। और बताइए। या सो मेरी ड्रम की जर्नी चालू हुई 2013 से, जिसमें मेरा एमसीएच मतलब कैंसर सर्जरी की सुपर स्पेशलिटी चल रही। तो 10 से 13 जब मेरा एमएस चल रहा था तब मैंने मेरा गिटार कंटिन्यू किया। उसमें मैंने काफी सारे परफॉर्मेंस भी लोकल मॉल्स में या मेरे ग्रुप के साथ, बैंड के साथ जैमिंग वो किया। बाद में मैंने ड्रम सीखना चालू किया बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। गिटार इज अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट जो सुर और ताल बोलते हैं हम हिंदी में। ओके। ठीक है, तो गिटार इज ऑल अबाउट सुर, ओके। जो आवाज आती है, जो टोन आता है, एंड ड्रम इज अबाउट ताल। ओके। ठीक है, ये जैसे क्लैप कर रहे हैं हम, तो ये क्लैपिंग इज अ ताल। ओके। ठीक है, और सुर है वो वॉइस की नोट पे से पता चलता है कि भाई ये हाई नोट पे गा रहा है, लो नोट पे गा रहा है, अच्छी नोट पे गिटार बजा रहा है। सो सुर और ताल दोनों में इंडल्ज होने के लिए देन आई डेवलप्ड इंटरेस्ट। चालू किया था स्ट्रेस बस्टर के हिसाब से, बट आई फाउंड माय पैरेलल लव इन म्यूजिक लेटर ऑन। Oh, interesting. I picked up a wonderful word today. Parallel love. Interesting. Yeah. Interesting. Interesting. Okay. Go on, sir. Go on. या सो हर एक जन एक पैरेलल लाइफ जीता है। जैसे आप हो, आपका प्रोफेशन है, ऐसे भी आप पैरेलल पर्सन हो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में। True. तो ड्रम मैंने चालू किया 2013 में और 16 तक मैंने सीखा। 16 में आई बिकेम अ पार्ट ऑफ अ बैंड विच वाज कॉल्ड साइन पाई बाय 2। इट वाज फॉर्म्ड बाय इंजीनियरिंग गाइस एज द नेम सेज। Okay. या और उसके साथ भी हमने अहमदाबाद की एक माइका इंस्टीट्यूट है, उसमें हमने परफॉर्म किया। हम Okay. अलग अलग जगह परफॉर्म करते थे। अभी तो वो लोग चले गए, तो आई एम एज ऑफ नाउ आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी बैंड मेंबर, बट देन आई कंटिन्यूड माय म्यूजिक जर्नी बाय लर्निंग माय थर्ड इंस्ट्रूमेंट व्हिच वाज ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स। कोरोना टाइम्स वेयर द डार्क टाइम्स, जैसे आपको पता है। Correct. ठीक है, हाँ, और मेडिकली भी डार्क टाइम्स और इमोशनली भी, क्योंकि आपको अगर वर्क बंद करके घर पे कोई बिठा रहा है, ठीक है, तो वो जो बोलते हैं कि खाली दिमाग वो शैतान का घर। True. तो तभी मैंने ये 2 चीज नहीं इंट्रोड्यूस की कि मैं 2 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो अभी सीख ही गया हूं, तो क्यों ना तीसरा एक इंस्ट्रूमेंट सीखा जाए विच इज कॉल्ड यूकेलेले। Okay. तो यूकेलेले लुक्स लाइक अ गिटार बट अ स्मॉलर Okay. गिटार। इट्स Okay. बेसिकली अ स्पेनिश इंस्ट्रूमेंट, पोर्टुगीज Okay. वर्जन है वो उसका। तो वो मैंने लर्न किया ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स। Okay. Another thing that I started during the corona or so-called dark times was the learning the Spanish language. Okay. बिकॉज जब नई लैंग्वेज सीखना चालू करते हैं तो हमारा जो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर है, जैसे आप किस हाथ से लिखते हो? Right hand. हाँ, सो आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट है, तभी आप राइटी हो। Okay. हाँ, और मैं लेफ्टी हूं, तो मेरा राइट ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट है।
ठीक है। Okay. सो हमारा जो नॉन डोमिनेंट Okay. हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करने के लिए मेडिकली प्रूवन 3-4 तरीके हैं, जिसमें लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज अ वेल प्रूवन मेथड टू एक्टिवेट योर नॉन डोमिनेंट ब्रेन। Okay. तो मैंने स्पेनिश लैंग्वेज सीखना चालू किया, जो मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मेरा स्ट्रीक भी है, स्पेनिश सीखने में मेरा 1600 दिन प्लस का स्ट्रीक है अभी तो। Oh. यस, एंड वो हमें मेडिकली इस तरह हेल्प करता है टू एक्टिवेट अवर नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर। कि अल्जाइमर आपने सुना होगा, Correct. जो Yes. ओल्ड एज का डिजीज है, अल्जाइमर। मैं अभी फिर से पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि काफी सारी चीजें हमारे डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जो हमने बात की। सो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज और हार्बरिंग अ न्यू स्किल इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, ठीक है। तो अल्जाइमर्स को भी कम करता है। अगर आप लॉजिकल पजल सॉल्व करते हो, या कोई नई लैंग्वेज सीखते हो, या कोई आर्ट में इंडल्ज होते हो, जैसे पेंटिंग इज एन आर्ट, सिंगिंग इज एन आर्ट, तो वो आपका नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर या क्रिएटिव ब्रेन एक्टिवेट करती है। तो अल्जाइमर के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं उससे। वो आपकी ब्रेन हेल्थ पे सीधा अफेक्ट करती है। Okay. So do you get a time to perform now, or you just play for yourself? As of now, I play for myself only because I don't get to go out and perform, because मेरे शेड्यूल्स काफी सारे फिटनेस रिलेटेड, ट्रायथलॉन ट्रेनिंग, मेरे ऑन्को सर्जरी के शेड्यूल्स काफी। तो मैंने अभी काफी टाइम से परफॉर्म नहीं किया है फॉर पब्लिक, बट आई डू परफॉर्म ऑन डॉक्टर्स डे। सो हमारा जो हॉस्पिटल का डॉक्टर्स डे होता है, उसमें हमारा परफॉर्मेंस रहता है। उसमें आई परफॉर्म पब्लिकली एंड आई ट्राई टू डिलीवर माई आर्ट टू पीपल। Interesting. So since you mentioned about you are pretty interested into your fitness, आप ट्रायथलीट हैं, तो उसके बारे में बताइए, आपकी फिटनेस जर्नी के बारे में बताइए। बिकॉज आई नो यू एक्चुअली बीइंग अ कैंसर सर्जन, यू होल्ड 6-pack abs ऑल्सो, तो उसके बारे में बताइए। यस, उससे पहले मैं अपनी म्यूजिक जर्नी कंटिन्यू करके खत्म करना चाहूंगा कि ड्रम और यूकुलेले के बाद मैंने अभी अभी तबला सीखना चालू किया है। ओके। विच इज अ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग अ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट एंड क्लासिकल वन इज कि क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना इज अ सीरियस बिजनेस। क्लासिकल कोई भी आपको आर्ट सीखनी है, क्लासिकल म्यूजिक सीखना है, क्लासिकल गाना सीखना है, तो वो अपने आप में एक साधना बोलते हैं उसको लर्निंग नहीं बोल सकते आप, साधना बोल सकते हो। तबला मैं 2.5 years से सीख रहा हूँ, और आई ऑल्सो क्लियर एग्जाम फॉर फर्स्ट 2 years, और मेरी 3rd year ऑफ एग्जाम तबला अभी नेक्स्ट मंथ आ रही है। ओह, इंटरेस्टिंग, ग्रेट। Yeah. And going back to my fitness journey, it started very casually. You'll be surprised to know how I started my fitness journey. One of my friend used to be very fat and overweight. Okay. MBBS के दिनों में 2010 की बात है, तो 2010 में his girlfriend used to be very skinny. Okay. वो skinny girlfriend is the reason I'm here in front of you टुडे। वो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको वेट कम करने के लिए बोला कि भाई तू ओवरवेट है, हम दोनों अच्छे साथ में नहीं लग रहे, तो तू जिम चालू कर। सो दैट फ्रेंड केम टू मी, और उसने मुझे बोला कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है कि मुझे वेट कम करना है, तो तू भी चल मेरे साथ जिम में। Okay. So that's how I went there to give him company. I had no personal goals of exploring the fitness or anything. But once we started, it was my first day at the gym. I still recollect the memories if I can share with you. तो फर्स्ट डे पे मैं डंबल उठा रहा था जिम में, और पीछे से कोई ट्रेनर आया। वो मेरा हायर किया हुआ ट्रेनर नहीं था, मगर वो कोई गलत कर रहे हैं तो आपका फॉर्म करेक्ट करेगा, यार आप कुछ स्टूपिड सी चीज कर रहे हो तो आपको रोकेंगे, ठीक है। तो मैं जो सो कॉल्ड स्टूपिड सी चीज कर रहा था, विच वॉज लिफ्टिंग अ हैवी डंबल, ही टोल्ड मी कि ही टोल्ड मी कि अगर आपका पहला दिन है तो आप इतना हैवी लिफ्ट मत करो, आप लाइट वेट से चालू करो। ओके। तो वो तो चला गया बता के, और मैंने उसके सामने डंबल रख दिया, वो चला गया। बाद में फिर से वही सेम डंबल से मैंने चालू कर दिया। और दूसरे दिन मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं ब्रश भी नहीं कर पाया था। मेरा मुंह ब्रश के पास ले जाना पड़ता था, हाथ ब्रश यहाँ तक नहीं आ रहा था, तो पूरा मसल स्पाज्म में चला गया। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी। बाद में वो मेरे ओवर फ्रेंड ने तो उसका वेट कम होने लगा, तो उसने तो 3 महीने में उसका टारगेट अचीव हो गया, तो उसने बंद कर दिया। और मेरी फिटनेस जर्नी है वो अभी अभी धीरे धीरे इवॉल्व होती होती मुझे वो भी पता चला लेटर ऑन। मैंने कभी भी जिम बंद नहीं किया, 2010 से चालू किया है, तो आई डोंट टेक रेस्ट डेज, आई गो टू जिम इवन ऑन संडेज। Oh, okay. Yes, I take rest days only when my other activities planned which can replace my activity, which is playing or running or swimming. वो जब होता है तभी मेरा जिम होता है, उसमें रेस्ट डे होता है।
और मेरी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जर्नी है वो 2010 से लेके अभी तक कंटिन्यू है, मगर वो इवॉल्व ऐसे हुई है कि मेरी डाइट कॉन्शियसनेस बढ़ी है। मुझे वो इक्वेशन पता चला है कि व्हाट यू डू ऑन द जिम फ्लोर इज नॉट इनफ। You have to carry that same enthusiasm when you go for eating, when you go for refueling, when you go for recovery। जैसे स्लीप की बात करें तो स्लीप भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना एक्सरसाइज या स्ट्रेन ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। अदर एस्पेक्ट दैट आई कॉल पैरेलल लव, जो जिसकी हमने बात की अभी, तो पैरेलल लव बाद में ग्रो होने लगा रनिंग में, साइकिलिंग में, बिकॉज वो भी पता चला कि मैं आप बॉडी बिल्डर तो है नहीं कि हमें जो स्टेज पे जाके पोजेस देने हैं या मसल शो करने हैं, मगर हमारा एंड्योरेंस बना रहे और अच्छी तरह से एज कर पाए हम। वो अगर हमें करना होगा तो एंड्योरेंस बढ़ाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस इज वन ऑफ द अदर एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ। तो वो एंड्योरेंस के लिए मैंने काफी रनिंग चालू किया, मैराथन्स किया। आई ऑलरेडी रिसेंटली आई कंप्लीटेड खारडुंगला चैलेंज व्हिच वाज 72 किलोमीटर ऑफ रनिंग एट हाई एल्टीट्यूड। आई एम एन अल्ट्रा साइक्लिस्ट एज वेल, जिसमें हम साइकिलिंग करते हैं फॉर 200, 300, 400, 600 किलोमीटर्स तक। एंड आई एम इनटू स्विमिंग रिसेंटली, तो स्विमिंग मैंने 2-3 महीने से चालू किया है। सो आई एम ट्राइंग टू grow myself in the aspect of swimming as well। तो multifaceted है आप तो, because not only medical, not only into music, you are into fitness, and within the fitness aspect also you are specializing into many things। You mentioned about being a triathlete, तो वो आपकी जो तैयारी है वो आपने किस तरह से आपका इंटरेस्ट डेवलप किया और अभी आप क्या एक्टिविटीज करते हैं, इंक्लूडिंग अलॉन्ग विथ योर जो आपका बिजी शेड्यूल, उसके साथ अभी आप क्या करते हैं? अभी माय शेड्यूल स्टार्ट्स एट 4 AM in the morning and it starts with either running, cycling। मेरा जो मैं ट्रायथलॉन का शेड्यूल फॉलो करता हूँ उसकी ट्रेनिंग का, उसमें either रनिंग और साइकिलिंग आता है। कई बार मेरे ब्रिक सेशन रहते हैं, तो आपको वो जान के हैरानी होगी कि मेरे वीकेंड्स होते हैं वो ज्यादा हेक्टिक होते हैं वीकडेज से। क्योंकि वीकेंड्स में मेरा लॉन्ग ब्रिक सेशन रहता है जिसमें मुझे बैक टू बैक साइकिलिंग या स्विमिंग और रनिंग करना रहता है। ठीक है, सो आई एम ट्रेनिंग माई सेल्फ फॉर दैट ट्रायथलॉन, बिकॉज हेल्थ एज वी नो इज अ 360 डिग्री एस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपने डाइट अच्छा कर दिया तो आप स्ट्रेन ट्रेनिंग कम करोगे तो चलेगा, स्ट्रेन ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हो तो ये एंड्योरेंस वर्क कम करोगे तो चलेगा। इट्स अ 360 डिग्री। यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ। एंड व्हेन वी से हेल्थ, अपनी रिकवरी भी इतनी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका स्लीप और न्यूट्रिशन हो गया तो इट हेल्प्स यू रिकवर। जो मेरा प्रोटीन इंटेक मैंने बताया, इट इज पार्ट ऑफ माय रिकवरी। अगर आप इतना हाई एंड्योरेंस रनिंग या साइकिलिंग कर रहे हो तो वो असल को डैमेज करेगा। इट्स अ स्ट्रेस टू योर बॉडी। Correct। So to deal better with the stress, you have to take a good amount of protein. You have to take more than 4-5 hours of sleep, because जो लोग 6-7 घंटे की स्लीप बोलते हैं वो मेरे शेड्यूल में तो मैच ही नहीं होती। So my sleep is around 4 to 5 hours, और हम सबकी स्लीपिंग एवरेज अलग अलग होती है। Not only the length but the depth of the sleep is also important। आपकी इतने बिजी शेड्यूल में आप सिर्फ 5 घंटे सोते हैं? Yes, that's my average sleep as of now। जैसा मैंने बताया कि डेप्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं फिटनेस डिवाइस पहनता हूं तो फिटनेस डिवाइस में ट्रैक होता है आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कितना नीचे जा रहा है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है, ओनली द लेंथ ऑफ स्लीप इज नॉट रिक्वायर्ड, योर वेल बीइंग ऑफ द स्लीप इज मेजर्ड बाय द डेप्थ ऑफ योर स्लीप एज वेल, जो डीप स्लीप बोलते हैं हम। तो डीप स्लीप अगर आप मैनेज कर रहे हो तो यू कैन अफोर्ड टू हैव लेस आवर्स, लेस लेंथ ऑफ स्लीप, बट स्टिल रिकवर फास्ट। वो कितना होना चाहिए? अराउंड आपका 20 to 30% ऑफ द पार्ट शुड बी द डीप स्लीप आइडियली, जो अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मगर अगर 10% से 15% तक भी अगर आप अचीव कर पाते हो तो दैट कैन मेक यू गो। Okay, interesting। Since you are fully engrossed into music, fitness, तो आप इन सब चीजों के लिए समय कैसे निकालते? बिकॉज आप अपना शेड्यूल बता रहे थे, यू कैन कंप्लीट अबाउट योर शेड्यूल, आप बताइए, बिकॉज हमारे व्यूअर्स वो जानना चाहेंगे। यस, बाद में अराउंड आफ्टर 7 to 8 AM हमारा सर्जरीज शेड्यूल्ड रहती है। सो ऑन्को सर्जरीज आर लॉन्ग। ठीक है, वो अपेंडिक्स और हर्निया सर्जरी की तरह 2 घंटे या 3 घंटे में खत्म नहीं होती। They sometimes last from morning till afternoon, morning till evening, evening to night। तो 8-10 घंटे की सर्जरी होती है जिसमें मेरा और मेरे प्लास्टिक सर्जन दोनों का रोल होता है। तो आई कंप्लीट माय वर्क बाय अराउंड इवनिंग 6 to 7 PM। एंड देन इफ इट इज प्रोलॉन्ग देन उस दिन जिम मिस होता है, और अगर वो कंप्लीट हो गया 6-7 बजे तक तो आई देन हिट द जिम। And I do my strength training and powerlifting in those times in evening gym hours, and then I learn music in the later at night। मेरा जो तबला का जो ऑनलाइन सेशन रहता है तो वो मेरे गुरुजी है, वो राजकोट है, तो मैं राजकोट से ऑनलाइन में शेड्यूल में ऑफलाइन जाने का टाइम नहीं,
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वी अंडरस्टैंड वी अंडरस्टैंड। ओके, तो ऐसे कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे कि आज के जो युवा हैं, आज के जो यंगस्टर्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस कर पाएंगे? बिकॉज आप ऑलरेडी 3-4 बड़े एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो किस तरह से वो अपनी लाइफ को जगल कर पाएंगे? हाउ कैन दे मैनेज इट बेटर? टू मैनेज इट बेटर, सेल्फ लव और बीइंग सेल्फिश, उसमें जो बहुत थिन लाइन होती है उसको समझना जरूरी है कि आप अपने आप में इतने एनग्रोस नहीं हो जाओ कि आपकी फैमिली सफर करे एंड द पीपल अराउंड यू सफर और योर प्रोफेशन सफर्स, राइट? सो दैट्स अ फाइन बैलेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम कि आप प्रपोर्शनेटली अगर आप किसी दिन फैमिली को अच्छा टाइम नहीं दे पाए या 2-3 दिन आप एक्टिविटीज में इतनी बिजी हो कि फैमिली के साथ बात भी नहीं हो, तो यू कॉम्पनसेट इट लेटर ऑन बिकॉज यू हैव टू इन द एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। वी कैन नॉट गेट कैरिड अवे बाय लुकिंग जस्ट एट अ सिंगल डे कि भाई आज तो एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिला है तो बहुत खराब चीज है, मेरा फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं, योर फैमिली इज स्टिल सपोर्टिंग यू, बट जस्ट बिकॉज यू हैड टू बी विद देम दैट डजंट मीन योर अदर गोल्स आर सफरिंग। सो कंसिस्टेंसी का पहला रूल हमें ये समझना चाहिए कि फैमिली के साथ या रिलेशनशिप में या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, फिटनेस में, डाइट में, कंसिस्टेंसी इज एक्सेप्टेंस ऑफ द वेरिएशन। ओके, इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द वेरिएशन। ओके, कंसिस्टेंसी इज नॉट लाइक यू विल बी 100% एवरी डे। ओके, being 60% someday, being 50% someday, being 95% someday, and being even 10% someday. It is a part of being consistent, right? ओके, Yeah. So वो फैमिली पे भी वही चीज अप्लाई होती है और हेल्थ पे भी वही चीज अप्लाई होती है कि यू बी कंसिस्टेंट विद द फैमिली, कंसिस्टेंट विद योर डाइट एंड फिटनेस शेड्यूल्स। करेक्ट। नाउ आई थिंक वी हैव लर्नड अबाउट आपकी जो मेडिकल फील्ड है, आपका जो म्यूजिक जर्नी है, आपकी फिटनेस जर्नी के बारे में बताया, पर हमने ये भी जाना है कि डॉक्टर दीपेन सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है और बहुत पॉपुलर है, तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं? सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का एक जो मोटिवेशन है वो ये है कि इफ यू आर फॉलोइंग सम गुड हैबिट और इफ यू आर फॉलोइंग बीइंग डेडिकेटेड टू सम गुड थिंग्स व्हिच कैन पॉजिटिवली अफेक्ट पीपल इन अ गुड वे टू लीड टू अ बेटर लाइफ एज अ सोसाइटी और एज अ ह्यूमन बीइंग, तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर सोशल मीडिया से दूर रहते हैं या डॉक्टर्स उतने एक्टिव नहीं होते सोशल मीडिया से, मगर हमें ये समझना चाहिए कि अगर आप इंटेलेक्चुअल बीइंग हो और अगर आप कुछ दो चीजें भी अच्छी कर रहे हो, दो चीज, चाहे वो दो चीज एकदम माइन्यूट दो चीज हो, तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस इन अ पॉजिटिव वे कर सकते हो। वो दो चीज अगर आप लोगों को बताओ तो व्हाई नॉट? यस, क्योंकि बुरी चीज तो लोग देख ही रहे हैं काफी सारी, ठीक है, मगर आप कुछ इंफॉर्मेटिव चीज दे रहे हो। जैसे मेरा आपके साथ ये जो लाइव सेशन चल रहा है, ठीक है, अगर आप पूछो कि क्यों ये करना है, तो आई हैव एन आंसर कि अगर आप दो चीज लोगों को अच्छी बता पा रहे हो और वो दो लोग फॉलो कर रहे हैं तो उनकी लाइफ अच्छी हो रही है, सो व्हाई नॉट? करेक्ट। ओके, सो आप जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो डू यू थिंक कि देयर इज गोइंग टू बी अ बैगेज कि आप एक मेडिकली सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, आपका म्यूजिक जर्नी है, आपकी फिटनेस रिक्वायरमेंट्स है, आपका परिवार है, आपकी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बावजूद अब जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं, सो डू यू थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ बैगेज फॉर समबडी लाइक यू कि मैं कैसे इस पे इतना एक्टिव रह सकता हूं, या आप उसे कैसे डील करते हैं? मोर देन कॉलिंग इट अ बैगेज, आई वुड लाइक टू कॉल इट अ पार्ट ऑफ द पैकेज। ओके, okay, yeah, if you consider myself a package, this is the part of the package के जो हम बोलते हैं कि 360 डिग्री पिक्चर, ठीक है, सो उसमें if we are here as a human being on this shitty planet, sorry for calling our planet shitty, but if you are on this very cruel and shitty planet, then if you cannot motivate and uplift each other, what is the fun or what is the purpose of living here on this planet? True, very true, very true, very true. Okay, what is one single takeaway? Let's say 2025 खत्म होने आ रहा है, अभी सिर्फ 2-3 महीने बाकी हैं. What is one single takeaway for you in 2025? One single takeaway which I have received as a personal message is what I just told you, is consistency. Okay. कि आप में अगर टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, और अगर आप उससे परेशान है कि मुझे इसमें स्किल डेवलप करनी है मगर स्किल आ नहीं रही है, तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि यू स्टे कंसिस्टेंट until the time you get result and even after that. Correct. And when I say consistency, it is accepting your performance variations. आपके एनर्जी लेवल्स भी हर रोज चेंज होने वाले हैं, आपके कमिटमेंट्स भी हर रोज चेंज होने वाले हैं, और आपका आउटकम जो आप परफॉर्म कर पाते हो वो भी चेंज होने वाला है, ठीक है। सो उन सबका कलेक्टिव एक्सेप्टेंस is the new definition of consistency, and that is my takeaway from 2025. Correct.
Since we are venturing into 2026 now, आप हमारे इंडियन यूथ को जो यंग ग्रेजुएट्स है, यंग प्रोफेशनल्स है, उनको दो लाइफस्टाइल चीजेस क्या सजेस्ट करेंगे जो नॉन नेगोशिएबल है? First of all, stay active. That is Okay. not negotiable. Find your activity because it is directly related to your physical health, mental health, emotional health, everything. So stay active. And another thing which I want to communicate through this media is do no harm. Okay. जो हमारी मेडिकल फील्ड में दिखाया जाता है कि डू नो हार्म, इट अप्लाइज टू बोथ, डू नो हार्म टू योर सेल्फ एज वेल एज द सोसाइटी। Okay. आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें एथिक्स में आप इतने डीप रूटेड रहिए कि जिसमें आप अपने प्रोफेशन से या पर्सनल डिसीजन से किसी को भी हार्म नहीं करें। Okay. Great. And do you have any regrets? आपको कोई रिग्रेट्स है क्या? रिग्रेट तो नहीं बोलना चाहूंगा, मगर एक चीज है जो हम सबको होती है कि इफ एंड बट्स, राइट? Okay. सो इफ एंड बट में ये है कि इफ आई कुड टॉक टू माय यंगर सेल्फ लाइक माय 20-year-old सेल्फ, Okay. सो मैं वो बताना चाहता मेरी यंगर सेल्फ से कि आई शुड हैव बीन स्टेड एक्टिव। Okay. ये तो आपने मेरा सवाल चुरा लिया। हाँ जी, बताइए। सो एक्सरसाइज पे कमिटमेंट अगर लाइफ में जल्दी आ जाता है तो आपकी फिटनेस जर्नी उतनी आप अच्छी हेल्दी माइंड एंड बॉडी लीड कर सकते हो। सो दैट वाज माय रिग्रेट कि मैं पहले से, क्योंकि मेडिकल फील्ड में हमारी जो जर्नी रहती है उसमें शेड्यूल काफी टायरिंग रहते हैं। यू Okay. डोंट गेट टाइम फॉर योर सेल्फ और दी अदर, जिसमें आपका डाइट भी पूरा मेस्ड अप है, आपका शेड्यूल मेस्ड अप है, आप काफी सारी स्लीपलेस नाइट्स भी जग रहे हो, ठीक है? तो तब कैसे स्ट्रेस हैंडल करना, वो अगर नॉलेज ज्यादा अच्छे आ जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। सो दैट्स द ओनली रिग्रेट दैट आई। Correct, correct. So we take this as a your advice to your younger self, which is going to be a 20-year-old. या ओके, ग्रेट। कुछ रैपिड फायर सवाल है मेरे मेरे पास आपके लिए कि आपकी जो एट्रीब्यूट्स है, आपकी जो स्पेशलिटी है, यू आर अ ट्रेन मेडिकल डॉक्टर, यू आर अ कैंसर सर्जन, यू आर अ म्यूजिशियन, यू आर अ फिटनेस एंथुसियास्ट एंड ऑफ कोर्स यू आर अ सोशल मीडिया स्टार। तो ये आप सीक्वेंस में बताइए 1 to 4 में कि आपके क्या प्रेफरेंसेस है इसमें, या व्हाट इज गोइंग टू बी योर चॉइस क्लोज टू योर हार्ट? 1 2 3 4। Like I told you, surgeon is the first thing. Okay. I love doing the surgery because it cures people, and that's what I'm trained for, right? Okay. That is my forte. So surgery comes first. Fitness comes the very next because they are co-dependent. सर्जरी अच्छी है तो फिटनेस अच्छी रखनी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे अगर अच्छे से पेशेंट को केयर डिलीवर करना है तो आई हैव टू बी फिट, राइट? एंड देन कम्स द म्यूजिक, बिकॉज मैं पर्सनली मेंटली अच्छा रहूंगा और स्ट्रेस अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा तो ही मैं फिटनेस भी अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा और प्रोफेशन में। ओके, एंड द फोर्थ इज गोइंग टू बी सोशल मीडिया। या ओके, आप दिन में कितना सोशल मीडिया पे समय बिताते हैं? I follow digital detox, which is a regime that I'm off the social media every third day. Every okay. third या fourth day I stay off the social media because हमारा माइंड की ट्रेनिंग जो है उसमें हमें, जो मैंने बोला कि हमारी पेशेंस कम हो रही है, मतलब हमने पोस्ट डाली तो इतनी लाइक आ रही है वो हम चेक करते हैं, या इतने व्यूज मिले वो चेक करते हैं। सो टू कट दैट साइकिल आई फॉलो डिजिटल डिटॉक्स, जिसमें 3 दिन मेरा ऑन रहता है सोशल मीडिया, 1 day आई कीप off. So 3 days, 1 day, 3 day, 1 day. Around my social media time on an average is around 30 to 45 minutes as of now. Great. And meditation and music? Music. Great. Okay. Because for you, music is meditation. Music is meditation, yes. Correct. Okay. Given a choice, आपके पास challenging time है और आपके पास limited time है, तो आप 1 घंटा अगर आपके पास है तो आप म्यूजिक प्ले करेंगे या आप फिटनेस पे ध्यान देंगे? Fitness. Okay, great. Fine. So we are boiling down to your fitness thing. Do you think your fitness helps you to be a better surgeon? Definitely it does. Definitely it does. I just told you ना, onco surgeries are 10-12 hours long. कई सारे लोग होते हैं जो सर्जन होते हैं या ओवरवेट होते हैं, जिसको बैक इश्यूज रहते हैं, या कोई डॉक्टर है जिसका शेड्यूल ही इतना हेक्टिक है कि उनको काफी सारे स्ट्रेस के साथ, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस के साथ डील करना पड़ता है। तो एक्सरसाइज डायरेक्टली हेल्प्स मी टू मेंटेन माय एफिशिएंसी व्हाइल बीइंग एक्टिव फॉर द लॉन्गर वर्किंग आवर्स। तो आपके जो कॉलीग्स है वो आपसे जलते हैं क्या, आपसे जेलस है बिकॉज आप तो इतने फिट हैं? क्या वो आपसे टिप्स लेते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं?
जलते तो नहीं है मगर दे गेट गुड इंस्टिंक्ट्स फ्रॉम मी, वी शेयर इंस्टिंक्ट्स एज अ कलीग के फिटनेस इंस्टिंक्ट है तो वो भी कुछ फॉलो कर पाए, और वो भी अगर फॉलो करके इफ दे कैन लीड अ बेटर एंड हेल्दी लाइफ देन व्हाई नॉट, व्हाई टू गेट जेलस रादर देन गेट इंस्पायर्ड. Correct, correct, correct. And how often do you eat outside, especially the fast food? मेरे चीट डेज होते हैं. आई एम अ फूडी बेसिकली, आई डिड नॉट Okay, रिवील दैट. आई एम अ फूडी, बट okay. आई कीप माय फूडी सेल्फ अंडर वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल, एंड आई ईट आउट ओनली वंस अ मंथ. ओके, और आपके पसंदीदा फास्ट फूड क्या है? मैं पसंदीदा फास्ट फूड तो नहीं बोलूंगा, मगर व्हेन आई ईट आउट आई ट्राई टू कीप ट्रैक ऑफ माय प्रोटीन, सो उसमें भी आई एंड अप चूजिंग पनीर या छोले या चिकन अगर मैं नॉनवेज खा रहा हूँ. सो या, बट आई एम अ डेजर्ट पर्सन, सो या आई लव स्वीट्स. ओके, यू लव स्वीट्स, तो आपकी या आई पसंदीदा लव, स्वीट कौन सा है? मेरा पसंदीदा इंडियन स्वीट है रसगुल्ला. ओके, एंड नॉन और एंड उसके इसके अलावा? इसके अलावा आई लाइक ब्राउनीज एंड आइसक्रीम्स, एनीथिंग दैट इज स्वीट इज फाइन फॉर मी. ओके, ग्रेट. डू यू बिलीव इन प्रेयर? यस आई डू. एंड हाउ ऑफन डू यू प्रे? आई प्रे डेली ओके, because that's what you get connected to higher self by, right? करेक्ट, 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 करेक्ट. डू यू थिंक यू वुड लाइक टू डू वन थिंग डिफरेंट विच यू डिड टिल टुडे? आपने 2025 तक जो किया है आपकी लाइफ में, आप अगले साल कुछ अलग करना चाहेंगे? No, only blessing I want from my current self is that I am able to continue the same things in my life. Great, interesting. Any one change you want to bring into youth by your contribution? Yes, being more aware socially and being more responsible. आपकी एक डेली नॉन नेगोशिएबल हैबिट क्या है जो आप My करते हैं work. कुछ भी हो जाए? My नहीं, work. आपका काम तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप तो करेंगे बिकॉज आप Yes. जुड़े हुए, दिल से जुड़े हुए, बट उसके अलावा Yes. आपकी क्या एक हैबिट है जो आप नॉन नेगोशिएबल है? Non-negotiable is my fitness. I don't miss my workout. Okay, I would that's go to the interesting. gym even at 11 p.m. in the night if my gym is open, and I'll work out if the gym is closed. I'll try to manage my strength training. ग्रेट. आई थिंक डॉक्टर दीपेन, मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बट आई थिंक वी हैव लिमिटेड टाइम एंड वी हैव टेकन इनफ टाइम ऑफ योर्स, सो वी हैड अ वंडरफुल सेशन. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपेन. आई Likewise, थिंक likewise. द म्यूजिशियन, द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, द एथलीट एंड ओवर एंड अबाउ द मल्टीफेसेटेड डॉक्टर, कैंसर सर्जन डॉक्टर दीपेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. And we enjoyed the conversation. I hope you had a great time. Pleasure was entirely mutual. Even the questions that you asked and the talk we had, it can inspire a lot of people like we discussed. Oh, so thank you so much and looking forward to catching up soon. Once again, thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. Thanks a Thank lot you. for having me. Thanks a lot Thank for you. having me.